Then we can start now. Yeah. Okay, so good morning, everyone, and a very warm welcome to our third session. These sessions are presented to you by Scholar City Adventures, Kota, and Sushma Science Center, Pune. I will not go into details of each and every slide because many of you have seen it, though there are some repeat people. But I think for want of time, we will go ahead quickly through it. So, Sushma classes in Pune, our main focus is to educate student to be future thinkers and innovators, and whatever is required to do or achieve this, we try to work in that direction. I can't say that we are 100% there, but it is our endeavor, and very soon I'm sure that our students will be into this league, and we are very proud to say that our students are in IIT, ICERs, NITs. They are doing medicine. They are also NTSC and KVPY scholars. They have won quite a few government Olympiads, etc. And we were incorporated in 2011 June. What we focus is on small classrooms. We do not exceed over 25 to 30 students, whatever come may. We have a strong focus on conceptual understanding, and we encourage our students to not just work for getting through in some exams, but आपका conceptual understanding भी concepts भी clear होने चाहिए. We are trying to do best of technology and human touch because हम लोग strongly believe करते हैं कि टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही है इस जनरेशन में, इस जमाने में, बट आपको ह्यूमन टच भी बहुत ज़रूरी है, especially for education related fields. We also focus on futuristic skills. We try to hone those skills in our students to whatever extent that we could. So 6 से 10 तक हम लोग मेंटल एबिलिटी भी रखते हैं जो आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा. फ्रॉम कमिंग ईयर हम लोग लॉजिक भी इनकॉर्पोरेट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं रहेगी बट लॉजिक डेवलपमेंट हो जाएगा. सो आप जो भी प्रोग्राम या जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, बिकॉज आपको प्रोग्राम लॉजिक समझ में आ गया है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पिक अप दोज. We try to build a good connect with our students. This year, because of lockdown and all, we were not 100% there, but we strive to do that, and we subscribe to a artificial intelligence based test platform so that students benefit from the newer technologies. Scholar City, Kota, the institute or the firm which is incorporated by Manoj, who is one of our speakers today, was founded in 2020, and he established by an edupreneur with over 20 decades of exposure and experience in education industry. It focuses on career information counseling and whatnot about the career, everything related to it. It could be one-on-one counseling, assisting students in different areas, etc. The tagline conveys the ethos of a brand and its focus areas, education and knowledge, which is boundaryless and unlimited, like the universe. To tell you about myself, I am an alumni of Indian Institute of Technology, Mumbai, and I have done management from Indian School of Business in Hyderabad. After close to 16 years of corporate experience, I left my job and started working towards mentoring and educating students because that's my passion. I'm an educator, motivator, and thinker, and I'm completely committed to make the new generation future ready. I also do career counseling and guidance to students. Manoj, who is one of our speakers, and founder of this organization. He's edu professional turned into entrepreneur. He has done PGP Max from Indian School of Business in Hyderabad. He has also done international immersion programs IIPs at Wharton School, Business School in USA, Kellogg's Business School USA, and IE Business School Madrid, Spain. He's an MBA from RTU Kota and lot many other feathers in his cap.
He's also done quality management from BITS Pilani, which is a very famous institute. And after that, he was also working at a very senior level in Resonance Adventure, which is a Kota-based, very well-known pan-India firm. And now he has moved into his entrepreneurship venture. These are some of our success stories. Each and every student benefits is what our tagline is. So whatever level you are, you need not to be the topper always. There is a path to success, and many people, many students come up with flying colors little later in their life, which is perfectly all right. So yeah, without any further delaying the main purpose of the meeting, let's get into the today's discussion. We will do it in two parts. One will be related to NEET and medical careers, which will be taken by Manoj, and after that I will give you an idea, brief idea about careers in biological and chemical researches, and post that we will open to question and answer. Over to you, Manoj. Okay. Good morning, everyone. Thank you, Susma, for the introduction and opening the session. आज का जो सेशन है, it's a part of series of seminars or rather webinars जो हम पिछले वीक से कर रहे हैं, और ऑलरेडी इसमें 2 सेशंस हो चुके हैं हमारे, आज तीसरा सेशन है। और आज के सेशन का जो फोकस है मेनली ऑन मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। जो मेरा पार्ट है मैं लूंगा, और उसके बाद जो है सुषमा जो है लेंगे आपका सेशन साइंस और रिसर्च में, स्पेशली बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंसेस। So without further formalities, I'll start. Next. So this is about career in medicine and health sciences. We can move to next slide. This is the content that we'll cover throughout the session. About medicine, history of medicine, modern medicine क्या है, various practices medicine में कौन कौन सी हैं, मेडिकल एजुकेशन वर्ल्ड वाइड किस तरीके से रन होती है, इंडिया में कैसे रन होती है, then about medical courses, different courses duration, major specializations, मेडिकल सीट्स कितनी अवेलेबल है, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, एमबीबीएस के बाद कैसा करियर रहता है, प्लेसमेंट्स, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट के बारे में, अबाउट वेरियस मेडिकल कोर्सेज, allied courses in medical, etc. Next. So Sushma has already introduced me and my organization, so I'll not take much time for introducing again. Next. Yes. So now we can start. जो लोग मेडिकल, वैसे तो काफी कॉमन वर्ड है मेडिसिन और मेडिकल साइंसेज जो है, फिर भी अगर हम इसका हिस्ट्री देखें तो द वर्ड मेडिसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन मेडिकस, मीनिंग अ फिजिशियन. सो लैटिन से ये वर्ड डिराइव हुआ है मेडिसिन, और मेडिसिन इज अ साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. जो लोग मेडिकल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेडिसिन किस तरह की, मेडिसिन इज अ साइंस, एंड साइंस इन द एरियाज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. So medicine encompasses a variety of healthcare practices evolved to maintain and restore health by the prevention and treatment of illness. Basically जो भी diseases होती है उन सब के prevention और treatment के लिए जो science है जिसका use doctors करते हैं, that is called medicine. Next. ये जो है हिपोक्रेट्स, जिनको लगभग 2400-2500 साल पहले ये लोग, इन्होंने जो है इस प्रैक्टिस की शुरुआत की. जब मेडिसिन की बात करते हैं तो ज्यादातर जो एलोपैथी जो प्रैक्टिस है या जो एमबीबीएस जिसमें लोग करते हैं, हम उसके बारे में ज्यादा बात करें, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन साइंस. इसके अलावा और भी जो स्ट्रीम्स है साइंस मेडिसिन की, उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे, बट मोस्टली मेडिसिन जो है रिलेट कर पाते हैं सब लोग एलोपैथी से, विच इज मॉडर्न साइंस. तो ही इज कंसिडर्ड एज द हिपोक्रेट्स, एज द फादर ऑफ मेडिसिन. और जो भी डॉक्टर्स बनते हैं सब लोग वो हिपोक्रेट्स ओथ लेते हैं, है ना, जब डॉक्टर बनते हैं तो भाई इनका जो एक चार्टर है या जो इन्होंने मेडिसिन की जो प्रिंसिपल्स बनाए उनको हम फॉलो करेंगे. सो ये बहुत फेमिलियर फेस है मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर, हिपोक्रेट्स. नेक्स्ट. Just to make it interesting, how medical science has evolved over a period of 3,000 more than
3,000 years, and we take pride in saying that Ayurveda was the origin of medical sciences, which was originated from India. उसके बाद जो है धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड में जो है मेडिसिन डेवलप हुई, बट ये जो नॉर्मली मॉडर्न मेडिसिन है वो जो है हिप्पोक्रेट्स ने जैसे कि शुरू किया था, मैं बताई 2400-2500 साल पहले, और धीरे धीरे ये उसके बाद होम्योपैथी और भी बहुत सारी जो है जो पैथी है वो डेवलप हुई. नेक्स्ट इट्स जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ हिस्ट्री जस्ट टू मेक श्योर. उसके बाद वैक्सीन डेवलप हुए बहुत सारे, और उसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग में जो है काफी सारे इक्विपमेंट मशीन्स डेवलप हुई, ट्रांसप्लांट, ये बहुत सारे जो डेवलपमेंट है, स्टेम सेल थेरेपी लेटेस्ट जो है, क्लोनिंग, और ये बहुत सारी चीजें जो है धीरे धीरे डेवलप हुई, जो आज हम साइंस, जिस मेडिकल साइंस जिस डेवलप्ड फेज में हम लोग देखते हैं, इट हैज टेकन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू रीच दिस लेवल. नेक्स्ट रिसेंट पास्ट में देखें तो हम ये जो है वैक्सीन को लेके काफी डेवलपमेंट चल रहा है. 3D प्रिंटिंग जो है काफी पॉपुलर है, स्टेम सेल का यूज जो हो रहा है, और अभी सबसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है 2020 में जो सब लोग पूरी दुनिया फाइट कर रही है कोविड-19 से, उसका वैक्सीन अभी जो है डेवलप हुआ है, और भी वैक्सीन से भी डेवलपमेंट फेज में. सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. काफी सारी डेवलपमेंट हुए हैं. आई जस्ट ट्राई टू take a snapshot that so that we can relate how medical science has evolved over a period of last 3 centuries. Next, मॉडर्न जो मेडिसिन साइंस है वो कुछ उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस, जिसको हम नॉर्मली जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देखता है, फिजिशियन जो है चेक करता है. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग अबाउट मेडिकल साइंस, क्लिनिकल प्रैक्टिस. आप जैसे नॉर्मली डॉक्टर जहाँ बैठता है उस जगह को क्लिनिक बोलते हैं, और जैसे ही कोई मरीज आता है या तो अपने क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस. अनदर एरिया इज बायोमेडिकल रिसर्च, जहाँ पे बहुत सारे जो डिजीज है उनके बारे में, इन सब के बारे में जो है रिसर्च की जाती है. बायोमेडिकल रिसर्च, हाउ केमिकल्स और जो है प्लांट्स और इन सब चीजों के जरिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के यूज के साथ में जो है ना डिजीज वगैरह को हम कैसे पहचान पाते हैं, जान पाते हैं उनके बारे में, और फिर उनका डायग्नोसिस, रिसर्च और उनका जो ट्रीटमेंट डेवलप होता है. The another area is healthcare science, deals with the application of science, technology, engineering for the delivery of care. This part takes care of care part, कि कैसे उसको डिजीज को जो है हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, पेशेंट्स की केयर करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड हेल्थ केयर साइंसेज, जो मोस्टली हॉस्पिटल्स वगैरह में अच्छे तरीके से फॉलो होती है. नेक्स्ट, उसके बाद आती है मेडिकेशंस, जो ड्रग और फार्मा कंपनीज यूज करती हैं, कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है किस डिजीज के में काम आती है, उस पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है मेडिसिन की, उसके डोजेस डिफाइन होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन होती है, उसकी क्वांटिटी डिफाइन होती है, और कौन सी जो है मेडिसिन किस चीज के लिए काम करती है. सो दिस इज अनदर बिग एरिया ऑफ मेडिकेशंस. देन वन मोर एरिया ऑफ मेडिकल साइंस इज सर्जरी, which has evolved over a period of last couple of centuries, which focus on diagnosing and treating disease, deformity and injury by instrumental and manual means. This may involve a surgical procedure. जैसा आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कि किस तरह से डॉक्टर सर्जरी करके उस ट्रीटमेंट का, शरीर का कोई पार्ट खराब हो जाता है या शरीर के पार्ट में कुछ, नॉर्मली हम जैसे देखें हार्ट की सर्जरी होती है, और भी बहुत सारे डिजीज हैं जिनकी सर्जरी होती है. तो इसमें कहीं ना कहीं जो है मैनुअल और जो है सर्जरी जो है, और इंस्ट्रूमेंटल सर्जरी, इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें सर्जरी की जाती है. सो दिस इज अनदर एरिया. एंड अनदर वन व्हिच इज वेरी इवॉल्विंग दीस डेज इज मेडिकल डिवाइसेस. यूज ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस, जैसे सबसे सिंपल पुराना था थर्मोमीटर, एक डिवाइस डेवलप हुई थी, स्टेथोस्कोप, और आजकल जैसे आप कोई भी बहुत सारे जो है हम लोग करवाते हैं कि हम लोग ने ये चेकअप कराया, वो चेक कर पाया, ये मशीन यूज हुई, वो मशीन यूज हुई. सो ऑल दिस पार्ट ऑफ डिवाइसेस. हम लोग आजकल जो पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये सब डिवाइसेस है जो काफी इनकी वजह से जो है डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है. और एक्सरे जैसे करते हैं तो जिस मशीन से करते हैं, these are part of medical devices. So these are 6 popular areas of modern medicine. Next. अब अगर हम वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिसेस देखेंगे मेडिसिन की, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो है फॉलो जाती है वर्ल्ड वाइड. सो एलोपैथिक इज वेरी पॉपुलर, जिसको हम सब लोग एमबीबीएस बोलते हैं, या हम लोग मेडिसिन के साथ में ऑल्टरनेटिव वर्ड के रूप में इसी को यूज करते हैं, एलोपैथिक, which treat symptoms and diseases using drugs, radiation और surgery.
जो एलोपैथी का फंडामेंटल होता है कि वो जो सिम्टम्स होते हैं डिजीज के, उनको ड्रग्स से या रेडिएशन से या सर्जरी से ट्रीट करते हैं। इसके अलावा एक हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है, प्रैक्टिस जो सालों से इंडिया में फॉलो होता है, इट यूजेस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर व्हिच मे कंटेन हर्ब्स और मिनरल्स। जो हर्ब्स जो होते हैं, हमारे झाड़ होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं या मिनरल्स होते हैं, प्रीशियस मेटल्स भी होते हैं, भले वो गोल्ड हो, सिल्वर, आयरन हो, हर ऐसे होते हैं, यूज के इनके वेरियस फॉर्मुलेशंस यूज करके बीमारियों को ठीक करते हैं। तो विच इज अ फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद। उसके अलावा एक और हमारा इंडियन सिस्टम होता है सिद्धा, मेडिसिन सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन ओरिजिनेटिंग इन एंशिएंट तमिल कम इन साउथ इंडिया, जो हमारे साउथ इंडिया में से डेवलप हुआ है सिद्धा। वो भी एक, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल और बाद में देखें। Another area which is worldwide popular, in some pockets it is more popular, बहुत सारे लोगों का इसमें ट्रस्ट होता है, that is homeopathy, system of complementary medicine in which ailments are treated by minute doses। आप देखते होंगे होम्योपैथी में छोटी छोटी गोलियां यूज होती है, कोई भी ट्रीटमेंट लेने जाओ आपको छोटी छोटी गोलियां मिलती है। So doses of natural substances that in larger amounts would produce symptoms of the ailment। तो ये इसका एक अपना फिलोसॉफी है होम्योपैथी का कि वो जो नेचुरल सब्सटेंसेस जो डोजेज है उनको यूज करते हैं, वो ऐसा सिस्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जो बीमारी से लड़ने में काम करते हैं। इसके अलावा एक यूनानी पैथी जो है पर्सो अरेबिक सिस्टम है, जो पर्सिया, जो पुराना ईरान था और जो अरब है वहां से डेवलप हुई थी। और ये जो खास तौर पे जो इवन इंडिया में भी काफी डेवलप हुई, और जो मिडिल ईस्ट और जो अरब पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहां पे ये पुरानी है। और विच वाज इन टर्न बेस्ड ऑन द टीचिंग, जो ग्रीक फिजिशियंस थे हिप्पोक्रेट्स और गैलन, उन्हीं के जो टीचिंग्स थी उसी में से ये डेवलप हुई। ये जो है करीब 1500 साल पहले के आसपास जो है डेवलप हुई थी, 1400। वेटरनरी और एक एरिया है, तो ये जो फर्स्ट 5 है ये तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग से डील करती है, इंसानों से, लेकिन एक और जो जानवरों के लिए या डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जो practice होती है, that is called veterinary sciences। So these are 6 common areas of various practices of medicine followed in different parts of the world। Next, WHO आजकल काफी पॉपुलर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग यूनाइटेड नेशंस की जो आर्म है, और 7 अप्रैल 1948 को ये एस्टेब्लिश हुआ था, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है उसको पब्लिश करता है, दुनिया की जो हेल्थ है उसके बारे में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं। WHO चर्चा में रहता है, WHO ने ऐसा कहा, कोरोना बनाई है, वैक्सीन को लेके जो डेवलपमेंट होते रहे वो अपडेट है। सो WHO का जो स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में वो है कि हर 400 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। कितने लोगों पे? 400 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे इंडिया में जो रेशो है 1700 लोगों पे एक है। अगर हम इसमें सिर्फ MBBS या एलोपैथी डॉक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, और अगर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो मैंने अभी बात किया, आयुर्वेदा, सिद्धा, इन सबको भी इंक्लूड कर रहे थे तो भी ये रेशो 700 लोगों पे एक का है। तो अभी भी हम जो WHO का स्टैंडर्ड है उससे लगभग जो है, हम कैसे नहीं कि 2 से 3 गुना लेवल पे अभी हम लोग हैं। तो ये बताने का पर्पज है कि अभी भी डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है, और आने वाले टाइम में डिमांड कंटिन्यू रहेगी। सो मेडिसिन मेक्स अ वेरी गुड कैरियर ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो कुछ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड में मेडिकल साइंसेस है, क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल एंड हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, ये हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, हालांकि ये यूनिवर्सिटीज हर फील्ड में आगे है, तो मेडिसिन में भी जो है इनके अपने मेडिकल कॉलेजेस है। और ये जॉन हॉपकिंस काफी फेमस है, जिसको हम लोग सुनते हैं कोरोना के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स में इट्स अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस। और इसके अलावा जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है सभी के अपने अपने मेडिकल कॉलेजेस है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं 25 टॉप जो है इसमें इंक्लूड किया है, ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और इस तरह की जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इन सब इन्हीं में है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न साइंसेस को काफी टाइम से फॉलो हो रहा है। अभी इंडिया की जो है मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, एम्स और ये दूसरे इंस्टीट्यूट है, उनको भी बहुत फासला तय करना है वर्ल्ड लेवल पे पहुंचने में। But still, I have just included here those who are popular worldwide. Next, दुनिया में 3 तरह के अगर यूनिवर्सिटीज के रेटिंग सिस्टम देखें, उनकी जो क्वालिटी रेटिंग होती है वेरियस पैरामीटर्स पे, पैरामीटर्स इंक्लूड हो सकते हैं
स्टूडेंट टीचर रेशो, रिसर्च पब्लिकेशंस, उसके बाद डेमोग्राफी, जेंडर उनका, उन सब को लेके, और एलुमनी का क्या स्टेटस, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी रैंकिंग के। दुनिया में 3 जो रैंकिंग काफी पॉपुलर है, क्वालिटी, क्यूएस, टीएचसी और एआरडब्ल्यू। इन तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हर साल जो है यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग, एक तो जनरल, ओवरऑल, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, अलग अलग टोटल जो है रैंकिंग भी जारी रिलीज होती है इनकी। तो अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज देखें वर्ल्ड वाइड जो है, तो स्पेशली इन मेडिकल साइंसेस, सो कहीं ना कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अगर देखें तो हम 2 रैंकिंग में नंबर 1 आती है, 1 रैंकिंग में नंबर 2 आती है। ऑक्सफोर्ड है किसी में 2 पे, 1 पे, 7 पे। तो हमने कोशिश करी है कि क्यूएस को 1 to 10 लेके, और रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज की क्या रैंकिंग है, तो देखा जाए तो सारी जो यूनिवर्सिटीज है सभी रैंकिंग सिस्टम में टॉप 20 में मोस्टली, और एक आध जो है किसी दूसरी रैंकिंग में थोड़ा पीछे है। अदरवाइज दीज आर कंसिडर्ड टॉप इन द वर्ल्ड स्टडी ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि उन्हें बाहर पढ़ना है, बाहर से एमबीबीएस करना है या मेडिकल की स्टडी करनी है, वो इन यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स जाके उनकी वेबसाइट देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम, जो मैंने पहले बात की वो तो वर्ल्ड की थी, अगर हम एशिया में बात करें तो एशिया में अगर क्यूएस की रैंकिंग को अगर बेस बनाए तो दीज आर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज एंड मोस्टली आर फ्रॉम सिंगापुर, चाइना, ताइवान, हांगकांग। अभी हम देखें तो किसी मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं है टॉप 10 की रैंकिंग में अंदर। तो अगर हमारे देश में क्या है, लेकिन अभी भी ग्लोबल तो छोड़िए, अभी इंडिया में भी रैंकिंग में उनका नंबर अभी नहीं है। तो मैं जैसे कह रहा था कि हमें अभी एज ए इंस्टीट्यूशनल अभी हमें काफी फासला तय लेवल पे या इवन एशिया के स्टैंडर्ड्स पर आने के लिए, स्पेशली इन मेडिकल साइंसेस। नेक्स्ट, अगर ब्रिक्स कंट्रीज की एक और रैंकिंग रिलीज होती है, इसमें ब्रिक्स कंट्री जैसा हम सब लोग जानते हैं, ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पांचों कंट्रीज, दीज कंट्रीज आर कंसिडर्ड एज इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और जहां पे नेक्स्ट लेवल का जो है इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम जो G7 कंट्रीज है उनके अलावा। सो दीज आर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन उनको भी क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से हम लोगों ने 1 to 10 में जो है इनको जो है लिस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें चाइना की ही ज्यादातर यूनिवर्सिटीज है, सिर्फ ब्राजील की एक यूनिवर्सिटी इसके अंदर आती है। तो हमें अभी कहीं ना कहीं एज अ कंट्री हमें अभी बहुत इसके अंदर वर्क करना है कि किस तरह से हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है टॉप रैंकिंग में आ सके। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कैरियर इन मेडिसिन और इन टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, वो फर्दर जो है इनकी जानकारी इन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा अपना फोकस इंडिया पे लेके आ रहा हूँ। इंडिया में जो है मेडिकल काउंसिल जो है, जो मेडिकल एजुकेशन है या इवन बहुत सारी एजुकेशन है इंडिया में, कहीं ना कोई बॉडीज होती है, गवर्नमेंट बॉडीज, वो गवर्न करती है, उनको रन करती है, मैनेज करती है। तो अभी तक इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करती थी पिछले साल तक। दैट वाज कॉल्ड एज एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। बट अभी गवर्नमेंट ने इस साल से जो है एक नया बॉडी बना दी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, 2020 स्टार्ट किया है। और ये पूरे देश में जो मेडिकल साइंस है, स्पेशली इन एलोपैथी, उसको गवर्न करता है। उसमें मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट, मेडिकल एजुकेशन का सिलेबस, मेडिकल कॉलेज की सर्टिफिकेशन, क्वालिटी, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है जो उनको देखता है। ऐसे ही दूसरी जो पैथी है, दूसरी जो स्ट्रीम्स है, डेंटल को गवर्न करने के लिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो 1948 से वर्क कर रही है। नेक्स्ट, अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो उसको जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी CCH है, 1973 से वो उसको गवर्न करती है। गवर्न करने का मतलब कि कोई भी कॉलेज अगर खुलेगा तो इनसे उसको वो है परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या सिलेबस होना चाहिए, हर एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर, और कोई भी अगर गलत प्रैक्टिसेस होती है इंडस्ट्री में तो दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डॉक्टर और हॉस्पिटल और क्या है। सो दे रन द ओवरऑल सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल उसके अंदर कैसे रहना चाहिए। तो ये सब चीजें जो गवर्न करती हैं बॉडीज। वेटरनरी के लिए वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो 1984 से वर्क कर रही है, जो वेटरनरी साइंसेज को या वेटरनरी मेडिसिन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट,
इसके अलावा जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, CCIM, जो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, आयुष जिसे हम लोग बोलते हैं पॉपुलरली, सभी लोगों से आयुष मिनिस्ट्री या आयुष में ये सब हो रहा है। तो ये आयुष इज ए फुल फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, सबका एक एक वर्ड लेके ये वर्ड बनाया गया आयुष। सो अगर जब भी आयुष का नाम नेक्स्ट टाइम सुने तो आयुष इज टॉकिंग अबाउट इंडियन मेडिसिन सिस्टम विच इंक्लूड्स आयुर्वेदा, योगा, यूनानीपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। उसके बाद जो है, इसके अलावा जो है एक नर्सिंग एक बहुत बड़ा कैरियर होता है मेडिकल के, हम लोग बाद में और पढ़ेंगे अलाइड कैरियर्स के बारे में। सो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है जो नर्सिंग जो है एजुकेशन है उसको कंट्रोल करती है इंडिया में, इज वर्किंग सिंस 1947। नेक्स्ट, अब NTA सब लोग जानते हैं, NTA के बारे में गवर्नमेंट ने अभी एक नई बॉडी बनाई कुछ साल पहले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो मेडिकल से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उनको कर रही है इंडिया के अंदर। और ये मेडिकल जो एग्जाम है नीट है, उसके अलावा नीट UG और नीट PG दोनों ही लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करती है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस की कौन सी बॉडी है जो नीट एग्जाम कंडक्ट कर रही है इन दिनों। नेक्स्ट, अब अगर मेडिकल कोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं मेडिसिन में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, यानी कि जो 12th के बाद आते हैं। जैसे आप 11th 12th में अगर आपने PCB का कॉम्बिनेशन लिया है तो उसके बाद अगर आप कोई भी मेडिकल का कोर्स करते हैं तो ये डिफरेंट कोर्सेज है। अगर आप MBBS करते हैं या एलोपैथी मेडिसिन करते हैं तो MBBS कोर्स है, विच मीन्स बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर आप डेंटल में, अगर आप दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो देयर इज अ कोर्स कॉल्ड BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर आप होम्योपैथी फॉलो कर चाहते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यू विल गेट डिग्री BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप अगर आयुर्वेदिक इंडियन मेडिसिन सिस्टम में जाना चाहते हैं तो यू विल गेट बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप सिद्धा प्रैक्टिस को जो साउथ इंडिया से निकली है उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो BSMS है उसके लिए। देन अगर आप एनिमल्स लवर है, आपको लगता है कि हमें जो लोग जानवरों के ट्रीटमेंट के फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए BBSC होता है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज। और जो लोग यूनानी मेडिसिन या सर्जरी को फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए BUMS कोर्स होता है। इसके अलावा कुछ अलाइड कोर्सेज और होते हैं, जो लोग ये कहीं किसी वजह से या तो इन कोर्सेज में जो है ऊपर वाले कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाए और जिनको लगता है कि उनको दूसरे और कोर्सेज में इंटरेस्ट है, सो B फार्मा हो सकता है, BSc नर्सिंग हो सकता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी BPT जिसे बोलते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेज BNYSC, ये कोर्सेज है जो फॉलो कर सकते हैं आप या एडमिशन ले सकते हैं इनमें। नेक्स्ट, जब अगर आप अपनी अंडरग्रेड पूरी कर लेते हैं मेडिकल में, जैसे मैंने बताया MBBS BS, उन्हीं सब में फिर जो है मास्टर्स डिग्री भी होती है जिसको MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या MS मास्टर ऑफ सर्जरी कहते हैं, विच इज वेरी पॉपुलर। इसके अलावा एक DNB भी होता है, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, वो भी इक्विवेलेंट इन्हीं की मास्टर्स डिग्री है। MDS होता है, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, अगर डेंटल में जाना चाहते हैं तो। MCH मास्टर ऑफ चirurgical, MHMS मास्टर ऑफ होम्योपैथी, DM डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन और सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए अगर आपको करना है तो। अगर आप अलाइड कोर्सेज में देखें तो MBSc, M फार्मा, MPT और MSc नर्सिंग, इस तरह के कोर्सेज होते हैं। तो जो भी पैथी हम पसंद करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपनी अंडरग्रेड के लिए, उसी में फिर आगे जो है मास्टर्स के कोर्सेज हम लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स चलते हैं अलग अलग चीजों में, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डायलिसिस, डायग्नोसिस, एक्सरे, रेडियोग्राफी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया, रूरल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, दे आर सेवरल डिप्लोमास जो है अलग अलग जिनको जिसमें इंटरेस्ट बनता है उस पर्टिकुलर एरिया में जो है अपना डिप्लोमा कोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। कई बार लोग जो है पूरी डिग्री करने के बाद भी किसी पर्टिकुलर डिप्लोमा को और करते हैं उसमें और स्पेशलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी होते हैं जो डिप्लोमा से और कम ड्यूरेशन के होते हैं। छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो बहुत सारे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, तो उनमें आपको इस तरह के डिप्लोमा आप करके उसमें अपना करियर परस्यू कर सकते हैं।
या किसी हॉस्पिटल में सर्व करना है, किसी क्लिनिक में काम करना है आपको, या अपना खुद का कुछ प्रैक्टिस करना है, किसी लैब में वर्क करना है, या किसी डायग्नोसिस सेंटर में काम करना है, तो इस तरह के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स काफी हेल्पफुल होते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट, जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है मोटा मोटा एमबीबीएस का अगर हम देखें तो 5.5 साल का कोर्स होता है, उसके अंदर 1 साल की जो है इंटर्नशिप होती है। सिमिलरली बाकी सारे पैथी में भी कोर्सेज होते हैं लगभग उसी डिसीजन के होते हैं। इसके अलावा जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, एमडी, एमएस, डीएनबी होते हैं, वो लगभग 3 साल के होते हैं। और अगर सुपर स्पेशलाइजेशन करना है और तो डीएम, एमसीएस, डीएनबी के होते हैं, वो और 3 साल के कोर्स होते हैं। तो जो लोग एमबीबीएस मेडिकल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, देख लें कि 12th के बाद 18-19 साल में अगर आप 12th और 1 साल प्रिपरेशन में करते हैं कहीं पे, तो आप उसके बाद 5.5 साल, 3 साल लगभग 11-12 साल की पढ़ाई के बाद आप 28-30 साल तक आसपास जाके आप पूरे एक सुपर स्पेशलाइजेशन डॉक्टर बनते हैं। तो मेडिसिन के लिए कहा जाता है कि इसमें बहुत लेट कैरियर शुरू होता है, दैट्स ट्रू, लेकिन कैरियर इसका सबसे लेट भी चलता है। नॉर्मली इंजीनियर 60-65 के आसपास रिटायर हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है 70-75 तक अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर कैरियर लेट शुरू होता है तो इसमें जो है काफी लेट तक चलता भी है। सो वो जो 5-1 साल का जो डिफरेंस आता है यहाँ पे, वो बाद में आप कैरियर के आपके जब पीक पे होते हैं, टॉप पे होते हैं, तब आप कवर कर सकते हैं। तो शुरू का जो आपका टाइम का जो लॉस होता है, वो आप टाइम का लॉस जो है बाद में गेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डेंटल की जो कोर्सेज है उसमें 4.5 1 का होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज 3, और ये काफी सारे डिटेल्स है, मैं इनमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा मैंने आपको बताया है इसके बारे में। नेक्स्ट, अगर हम मेजर स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं कि मेडिकल साइंस में, क्योंकि काफी स्पेशलाइजेशन होते हैं इसमें, हालांकि एमबीबीएस के लेवल पे तो सब कॉमन पढ़ाई होती है, लेकिन उसके बाद जो है ना पीजी लेवल या सुपर स्पेशलाइजेशन के लेवल पर आपको कहीं ना कहीं सेलेक्ट करना होता है कि मुझे किसका डॉक्टर बनना है। मुझे जनरल मेडिसिन जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, कोई भी डिजीज होता है उसका होता है, सर्जरी में हो सकता है आपका, जनरल सर्जरी में। इसके अलावा पेडिट्रिक्स जिसको हम बच्चों का डॉक्टर बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी होती है जो मोटापे को या जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हम उनको बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है अपने स्किन वगैरह की जो डिजीज है उनको देखते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों के डॉक्टर हो सकते हैं। ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों के डॉक्टर हो सकते हैं। ईएनटी एक कंबाइंड होता है जो आपके आंख का नाक, ईयर, नोज एंड थ्रोट के डॉक्टर होते हैं। साइकेट्री जो है मेंटल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट करते हैं। एनेस्थेसियोलॉजी जो हम प्री सर्जरी जो जैसे कहते हैं ना कि वो कुछ सुंघाते हैं और उसके बाद आपको सर्जरी में पेन नहीं होता, तो वो एनेस्थेसियोलॉजी के भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं, लोग इसमें अपना करियर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, और सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करें आगे, तो ये पहले बात किया था मैंने, जनरल स्पेशलाइजेशन विच आर वेरी पॉपुलर, और भी अब सुपर स्पेशलाइजेशन, मान लो कि स्किन में आपने या डर्मेटोलॉजिस्ट है तो डर्मेटोलॉजिस्ट में फिर प्लास्टिक सर्जरी में जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी सब लोग जानते हैं कि जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनमें कुछ ना रिपेयर या डिफरेंट करना है, टिश्यूज का ट्रांसफर करके। कोई इंजरी हो जाती है, किसी के स्कार हो जाता है इंजरी में, उसको कैसे ठीक करना है, किसी के कोई नोज में कोई उसको ठीक करना है। आजकल काफी जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में या जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लोग अपना जो है प्लास्टिक सर्जरी करवा के काफी चेंजेस करवा लेते हैं बॉडी के अंदर। तो ये एक सुपर स्पेशलाइजेशन होता है जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो फॉलो करते हैं। न्यूरो सर्जरी जो दिमाग से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है स्पाइनल कोड वगैरह के, वो न्यूरो सर्जन होते हैं उसके लिए। कार्डियोथोरैक सर्जरी, जेनिटो यूरिनरी सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, जो सिर्फ बच्चों की सर्जरी करते हैं। गैस्ट्रो आंतों की जो बीमारियां होती है, एंडोक्रिनोलॉजी, क्लिनिकल हिमोटोलॉजी, ये बहुत सारे सुपर स्पेशलाइजेशन के एरिया है जिनमें आप अपना कैरियर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, और स्पेशलाइजेशन है खूब सारे, आप देख सकते हैं इसके अंदर आप नेफ्रोलॉजी, न्यूट्रोलिस्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें बाद में इंटरेस्ट बनता जाता है आपका, यू कैन बिकम सुपर स्पेशलाइजेशन इन दैट। नेक्स्ट, आई एम जस्ट लिस्टिंग आउट है ना, आप देख सकते हैं क्या क्या है इसके अंदर। आई विल होल्ड द स्लाइड फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स। रेडियोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजी, वेनरोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, आजकल जो नेक्स्ट, यस, तो ये तो हमने बहुत सारे जो है पैथी जो स्ट्रीम्स है मेडिकल की उनके बारे में बात की, कोर्सेज का स्ट्रक्चर देखा, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं। अब अगर देखें इंडिया में सीट्स कितनी है मेडिकल के लिए,
कई बार हमें लगता है कि शायद कम है, लेकिन अभी काफी सीट्स है इंडिया में मेडिकल को, काफी नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। एमबीबीएस के लिए टोटल जो है इंडिया में 554 कॉलेज है अभी, उसमें 275 गवर्नमेंट के और प्राइवेट के 279 है। टोटल सीट्स है करीब 83,000 सीट्स अवेलेबल है, उसमें से लगभग आधी गवर्नमेंट में और आधी प्राइवेट में। तो काफी सीट्स अवेलेबल है इंडिया में एमबीबीएस के अंदर। बीडीएस के अंदर देखें तो बीडीएस के अंदर भी 313 कॉलेज है, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है बीडीएस के अंदर, और उसमें भी करीब 27,000 सीटें हैं। गवर्नमेंट में सीट्स काफी कम है, 3,500 सीटें, लेकिन प्राइवेट में काफी एनफ सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा होम्योपैथी में भी 12-13,000 के आसपास सीटें हैं, आयुर्वेद में करीब 21-22,000 सीट्स है। तो अगर हम देखें इनकी बात करें तो ये चारों जो पॉपुलर चीजें पैथी है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीएमएस, जो ज्यादा पॉपुलर है, उन चारों में मिला के 417 गवर्नमेंट कॉलेज और 1019 प्राइवेट, यानी 1436 कॉलेजेस है, और उनमें 1,43,569 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें 50,000 गवर्नमेंट में है और 93,000 जो है प्राइवेट सेक्टर में। तो काफी सीटें हैं, आप देख सकते हैं, काफी सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, इसके अलावा मैंने कुछ और पैथी है जो वेटनरी है, सिद्धा, यूनानी, नेचुरोपैथी को भी ऐड किया इसके अंदर, इनमें भी कुछ कुछ सीट्स अवेलेबल है। तो टोटल मिला के इंडिया में 1540 कॉलेजेस हैं जो इन सारी 8 स्ट्रीम्स में वर्क कर रहे हैं, मेडिसिन की में, मेडिकल साइंस की में, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष मिला के, और उनमें 1,50,698 सीट, 1.5 लाख सीट अवेलेबल है इंडिया में। आप देख सकते हैं डाटा, कुछ डाटा जो है 18-19 के हैं, कुछ अभी जितने भी अपडेटेड मिल पाए मुझे, मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो आई थिंक वी कैन मूव नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मोटा मोटा जो कोर्स का स्ट्रक्चर होता है एमबीबीएस में, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर में जो है 1.5 साल का होता है, 3 सेमेस्टर होते हैं, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। थर्ड ईयर ड्यूरेशन में 1 साल का होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं, ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पढ़ते हैं। और फोर्थ ईयर जो है 2 सेमेस्टर का होता है, उसमें जो है आप मेडिसिन पढ़ते हैं, उसमें स्किन, साइकेट्री पढ़ते हैं, ओबीस, एस, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, सर्जरी में आप एनेस्थेसिया और ऑर्थोपेडिक्स पढ़ते हैं। हर एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इस तरीके से जो है 4 साल के अंदर आप करीब जो है 4.5 साल की आप पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर 1 साल की इंटर्नशिप हॉस्पिटल्स में होती है, जिसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, अब एमबीबीएस करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? आप जिस एरिया में आपने एमबीबीएस किया है या आपने बीएमएस किया है, बीएचएमएस किया, उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कर सकते हैं, उसके बाद और सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोई एमबीए भी कर सकते हैं, और जाके हॉस्पिटल आपको लगता है कि नहीं, मुझे ट्रीटमेंट में मजा नहीं आता, मुझे मैनेज करने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप वो कर सकते हैं। वेरियस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल जो करती है इंडिया में, उनमें आप काम कर सकते हैं रिसर्च में। इंडियन सिविल सर्विसेज में भी काफी डॉक्टर्स जो है अपना कैरियर बना रहे हैं, आईएएस, आईपीएस में भी। आप बाहर जाके पी लैब और यूएस एमएलई के जरिए आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं दूसरे कंट्रीज में। और ये सारे जो है कैरियर से जो एमबीबीएस के बाद जो है आपका खुद का क्लिनिक तो आप डाल ही सकते हैं अपना, आप किसी हॉस्पिटल में तो काम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेसमेंट जो होते हैं नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी सारी वैकेंसीज रहती है, रेलवे, हॉस्पिटल, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टेट्स वगैरह में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उन सब में। डिफेंस में, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में काफी रिक्वायरमेंट रहती है। गवर्नमेंट का जैसे मैंने बताया पीएससी, सीएससी, एनआरएचएम, आजकल जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चल रहा है, और गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, उनमें डॉक्टर्स की जरूरत हमेशा बनी रहती है, काफी कमी है स्पेशली इन रूरल सेक्टर के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स वगैरह में, और इसके अलावा आप मेडिकल कॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप एज ए टीचर भी अपना, प्रोफेसर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो सारी चीजें हो गई मेडिकल एजुकेशन के बारे में, कॉलेजेस, सीट्स वगैरह के बारे में। अब इनमें एडमिशन कैसे मिलता है? तो अभी इंडिया में सबसे अम्ब्रेला एग्जाम है नीट। अगर हम नीट की बात करेंगे तो सब कवर करता है, एमबीबीएस, आयुष, हर एक किसी भी चीज में जाओ आपको नीट देना ही देना है।
आपको बाहर भी पढ़ने जाना है, नीट के जरिए होगा। आपको किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में नीट जरूरी है, आपको डेंटल में जाना नीट जरूरी है, आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेना है नीट जरूरी है। हर जगह नीट का एप्लीकेबिलिटी है इंडिया में। सारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो होगा वो नीट के जरिए ही होगा। सिर्फ एक जिपमेर जो है पौंडीचेरी का कॉलेज है, वो एक अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट करता है। उसकी डिटेल्स आप जिपमेर की वेबसाइट पौंडीचेरी में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज बाकी सारे इंस्टीट्यूट, एम्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सभी में एडमिशन नीट के थ्रू ही होता है। तो हम लोग नीट पे काफी फोकस करेंगे, बिकॉज नीट अपने आप में सब चीजें कवर कर लेता है। नेक्स्ट, सो नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एलिजिबिलिटी और एंट्रेंस दोनों का ही टेस्ट है। कि एलिजिबिलिटी भी डिक्लेयर करता है कि इतने परसेंटेज से ऊपर आने वाले सारे बच्चे काउंसलिंग के एलिजिबल है, और इसकी मेरिट के जरिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस भी होते हैं। तो नीट इसको एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन ऑल मेडिकल एंड डेंटल, आयुष एंड वेटरनरी का हालांकि अलग से एग्जाम भी होता है। वेटरनरी कॉलेजेस कुछ फॉलो करते हैं नीट का, लेकिन ज्यादातर कॉलेज के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका आपका 12th होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी दोनों के साथ में, और 50% जो है मार्क्स आने चाहिए आपके 12th में, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से अगर आप है तो। और अगर आप पीएच से है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है आप जनरल में, तो 45% इज ओके 12th में एग्रीगेट। और ओबीसी, एससी या एसटी से आप है तो आपको 40% मिनिमम आपको होना चाहिए। तो ये काफी लिबरल एलिजिबिलिटी है। नॉर्मली सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन सबके पास में ये मार्क्स आ ही जाते हैं। तो आप परसेंटेज वाइज कोई ज्यादा इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए जो बच्चे 12th में 11th 12th पढ़ रहे हैं। नीट के लिए क्राइटेरिया, मिनिमम एज का क्राइटेरिया नीट के लिए है ना 17 ईयर्स जो है। जिस साल आप एडमिशन लेते हैं उस साल का जो 31 दिसंबर है उसमें आपका एज 70% से 17 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी का डिटेल्ड क्राइटेरिया वेबसाइट पे। थोड़े थोड़े इन क्राइटेरिया में कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए जो भी लेटेस्ट ब्रूशर होता है हर साल जब नीट या जो भी एंट्रेंस एग्जाम निकलता है, तो उसका लेटेस्ट जो ब्रूशर है वो आप हमेशा फॉलो करें, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया परमानेंट नहीं रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आते रहते हैं। तो जो भी अवेलेबल अभी करेंटली वो हम लोगों ने इंक्लूड किया है। और पूरे कंट्री के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज है उनकी सीट्स है नीट में, वो सभी जो है 15% सीटें जो है नेशनल कोटा के लिए अवेलेबल है, और बाकी 85% होती हैं वो हर एक स्टेट में जो है फिल होती है, अगर वो स्टेट लेवल का कॉलेज है। तो नेशनल लेवल के कॉलेज एम्स वगैरह है उनमें जो है पूरी सीट जो है आपको नेशनल कोटा के थ्रू ही जाती है। सो एफएमसी पुणे जैसे मैंने बताया अलग से जो है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम, ये जो नीट के थ्रू वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन दे हैव एडिशनल प्रोसेस ऑफ एडमिटिंग द स्टूडेंट्स। वो कुछ और अपना एक एडिशनल क्राइटेरिया लगाते हैं, बट दे शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट। उसके एक पर्टिकुलर कट ऑफ के बाद के बच्चों को वो बोलते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन दे हैव फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। एफएमसी पुणे में जिपमेर जो है अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट कराता है, बाकी सारे कॉलेज जो है एम्स के नीट के थ्रू कवर होते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम का पैटर्न जो होता है, मेनली एग्जाम के अंदर 3 घंटे का पेपर होता है और 180 क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एक करेक्ट आंसर होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर बॉटनी, जूलॉजी चारों के 45 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम देखा जाए तो बायोलॉजी का पार्ट है 50% कवर करता है, और 25% फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज है। तो बायोलॉजी जिन बच्चों की बहुत अच्छी है उनके काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के और बायोलॉजी के बराबर जो है इक्विवेलेंट है। तो इसके अलावा जो है 720 मार्क्स का जो है पेपर होता है। मार्किंग स्कीम हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो अगर आप 180 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 4, 720 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया अटेम्प्ट करके, तो आपको -1 आपका डिडक्ट भी हो जाएगा। इसके अलावा जो है 11 लैंग्वेज में कंडक्ट होता है, आप देख सकते हैं सारी लैंग्वेजेस में। और जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो देख सकते हैं कि मराठी लैंग्वेज में भी कंडक्ट होता है एग्जाम। हिंदी इंग्लिश में तो है ही, और ये जो रीजनल लैंग्वेज है इनमें भी कंडक्ट होता है। नेक्स्ट, अब देखिए कि कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मैंने सीट्स तो बताई थी आपको कितनी अवेलेबल है, लेकिन बच्चे भी काफी ये एग्जाम दे रहे हैं। अब क्योंकि अम्ब्रेला एग्जाम हो गया, अब हर कंट्री में, पूरे कंट्री के अंदर
सारे मेडिकल कॉलेज में इसी से एंट्रेंस होता है। तो लास्ट ईयर लगभग 16 लाख बच्चों ने नीट के लिए रजिस्टर किया था। उसमें से 15,97,000 जो थे, उनमें से 15,93,000 ज्यादातर इंडियन नेशनल्स थे। इसके अलावा बाकी बाहर से भी जो है एनआरआईज है, ओसीआईज है, पीआईओज है, ये लोगों भी, फॉरेनर्स ने भी कुछ ने किया था। एम्स के अंदर कुछ सीट्स फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है, कुछ कॉलेजेस जो है अलाउ करते हैं। तो ये सारा जो एग्जाम है लगभग 16 लाख बच्चे बैठते हैं और हर साल इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 1.5 लाख मेडिकल सीट्स की बात कर रहे हैं और 16-15 लाख से ऊपर बच्चे बैठे हैं, मतलब अभी भी जो है 10:1 का रेशियो है। लेकिन अगर सिर्फ एमबीबीएस की बात करते हैं, 50,000 सीटें हैं और 15 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 300 बच्चों में से एक बच्चा एमबीबीएस की सीट पाएगा। और अगर हम और जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो लगभग 50% रिजर्वेशन है, तो 600 में से एक बच्चे को एडमिशन मिलेगा। सो दिस वे इट बिकम्स वेरी कॉम्पिटेटिव। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो जो बच्चे लास्ट ईयर जिन्होंने एग्जाम दिया था, ज्यादातर इंग्लिश में, लगभग 80% बच्चे इंग्लिश में थे। हिंदी में करीब 12-13% बच्चों ने एग्जाम दिया था और सभी रीजनल लैंग्वेज में बहुत कम कम बच्चे एग्जाम देते हैं। मराठी में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं करीब 6,258 बच्चों ने मराठी में एग्जाम दिया था। तो कुछ कुछ बच्चे एग्जाम देते जरूर हैं सभी लैंग्वेजेस में, बट मेजर जो पार्ट है 90% से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश का है इसके अंदर। नेक्स्ट, अब अगर मार्क्स का कट ऑफ देखें तो नीट का कट ऑफ काफी हाई जाता है। कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ए सीट इन एमबीबीएस विच इज और गवर्नमेंट कॉलेज वो भी उसके अंदर, तो इस साल तो 720 में से 720 नंबर आए थे बच्चों के। सो काफी हाई जिसका ना कि स्कोरिंग एग्जाम है, लेकिन काफी कॉम्पिटिटिव है, एक एक मार्क्स पे काफी सारे बच्चे होते हैं। सो यू हैव टू वर्क नियर परफेक्शन। आपको लगभग बहुत ज्यादा चांस मिलता नहीं इसके अंदर, मतलब 650 नंबर के ऊपर जो है काफी हाई कट ऑफ जाता है जब आपको कोई अच्छे से गवर्नमेंट सीट का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सीट पे अगर आपको मिल जाती है एमबीबीएस, चाहे स्टेट में हो चाहे नेशनल लेवल पे, फीस रिलेटिवली काफी कम होती है। प्राइवेट सेक्टर में काफी महंगी एजुकेशन है एमबीबीएस की, और अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर में इट बिकम्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। Means it can go up to more than 50-60 lakh to 1 crore, or even some colleges are charging 1.5 to 2 crore for the entire course. So it's very expensive. गवर्नमेंट में तो जो है बहुत सस्ते में हो जाता है, तो few thousand rupees पर ईयर की फीस होती है। तो आपको ये देखना है कि जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोशिश करें कि आप किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर लग जाए। तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है तो, और अगर आप फाइनेंशियली आप वेल ऑफ है, अच्छे से पे कर सकते हैं, कोशिश गवर्नमेंट कॉलेज ही करें। लेकिन प्राइवेट कॉलेज भी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन काफी एक्सपेंसिव है। आगे चले हम, लास्ट ईयर के जो मार्क्स है टॉपर्स के, आप देखेंगे 720 पे 2 स्टूडेंट थे, लेकिन जो ट्राई ब्रेकर वाला क्राइटेरिया था उसमें शोएब ने टॉप किया था और आकांक्षा जो है सेकंड नंबर पे रही थी। और इसके अलावा टॉप 10 710 पे खत्म हो गया था। 720 से 710 के बीच में 10 स्टूडेंट है। यू कैन सी कि टॉप 10 मारने के लिए आपको कितने मार्क्स है। इट्स ऑलमोस्ट नियर परफेक्शन। एक या दो सवाल गलत हुए थे ही, अगर आपने 180 में से 2 सवाल गलत कर दिए, 8 नंबर, और 2 नेगेटिव, 10 नंबर गए। नेक्स्ट, तो ये दिस वाज अबाउट एमबीबीएस और नीट और सबके बारे में। अब मैं बाकी जो पैथी है थोड़ा थोड़ा उनमें आपका टाइम लूंगा। बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट, ये डॉक्टर सैमुअल हैनमैन है, जर्मनी के, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था करीब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, या 18वीं सेंचुरी के लेट में जो है इन्होंने, एंड तब से प्रैक्टिस चल रही है, सब लोग जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो हैनमैन विजिटेड इंडिया एंड ट्रीटेड पेशेंट्स विद होम्योपैथी आल्सो, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट, मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बट देख सकते हैं कि सब लोग काफी चर्चा रहती है कि एलोपैथी मेडिसिन हेमोपैथी में क्या रहता है। होम्योपैथी हैज नो साइड इफेक्ट्स, व्हेयरएज एलोपैथी may have some side effects. Homeopathy's working duration is slow, that is treatment is long course, whereas you need to take a short treatment in case of allopathy, ऐसा सब लोग कहते हैं। So it depends on situation which type of medicine is needed. Next, इसके कोर्स 5.5 साल का होता है ना, उसमें 4.5 साल तो पढ़ाई होती है, प्लस आपका कंपल्सरी इंटर्नशिप है 1 ईयर का। नेक्स्ट,
वही जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल हैं जिस तरह की, काफी स्पेशलाइज सेगमेंट है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उस हिसाब से इसके अंदर रहती है। इस प्रैक्टिस को बहुत सब लोग इन जनरल फॉलो नहीं करते हैं, बट कुछ लोगों का बहुत ट्रस्ट रहता है, वही लोग इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, ये सारे एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज इसमें वैसी ही है सभी तरीके से, आप हॉस्पिटल, फार्मेसीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, क्लिनिक्स, मेडिकल कॉलेजेस, कंसल्टेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेट डिस्पेंसरीज, होम्योपैथी मेडिसिन, तो ये सब में आप जो है अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आगे चले, आयुर्वेदा, डीएमएस, जो हमारे इंडियन ओल्ड सिस्टम है 3000 साल पहले, ऐसा कहते हैं कि जो भगवान धन्वंतरी है, उनके जो समुद्र मंथन से निकले थे भगवान धन्वंतरी, उनके जरिए जो है इसका आयुर्वेदा जो है उनको उन्होंने पॉपुलर किया दुनिया के अंदर, और वो आयुर्वेद का ज्ञान लेके वो प्रकट हुए थे। सुश्रुत जो हमारे पुराने सर्जन थे, जिनको दुनिया का फॉरमोस्ट सर्जन जाना जाता है, धन्वंतरी हिंदू गॉड ऑफ आयुर्वेदा जो है, और उन लोगों ने इनको जो है पॉपुलराइज किया था। So Ayurvedic medicine is a system of healing that originated in ancient India. In Sanskrit, Ayur means life of or living. जीवन, Ayur means, and Veda means knowledge. तो जीवन का ज्ञान या knowledge of living और science of longevity. दीर्घायु कैसे बने? हम लोग सुनते हैं पुराने जमाने में लोग बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहते, तो वो शायद आयुर्वेद की वजह से होता था। तो ये एक ऐसा इंडियन मेडिसिन सिस्टम है जो आज भी पॉपुलर है, और अब पिछले कुछ सालों से और ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। नेक्स्ट, इसका भी कोर्स 5.5 साल का होता है, वही 4.5 प्लस 1 साल की जो इंटर्नशिप होती है इसके अंदर। नेक्स्ट, ये एम्प्लॉयमेंट एरियाज है सिमिलरली। नेक्स्ट, वही जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह की अवेलेबल है, बट इस पर्टिकुलरली स्ट्रीम के अंदर। नेक्स्ट, वेटरनरी, जैसे मैंने बताया कि बीबीएससी जिसमें होती है, ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट होता है इसके लिए अलग से। नेक्स्ट, वेटरनरी का सब लोग, जैसे मैंने मोटा मोटा बताया, जो लोग जो है ट्रीटिंग डिजीज डिसऑर्डर्स एंड इंजरीज इन एनिमल्स, इसका पूरा फोकस एनिमल्स पे रहता है। वेट्स जिनको बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर, वेटरनरी फिजिशियंस जो है, वो लोग इसमें अपना करियर उनका बनता है इसके अंदर। तो ये स्पेशलाइज सेगमेंट है ओनली फॉर एनिमल्स और डोमेस्टिक डिजीज, जो भी जानवरों की जो भी बीमारियां होती है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए होता है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट वेटरनरी हो सकते हैं, अलग अलग जो है, कुछ जो है एनिमल्स पे, कुछ बर्ड्स पे, सब तरह की जो है, कोई डोमेस्टिक एनिमल्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो डिग्री होती है बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। इसके अलावा जो है कुछ कुछ कॉलेजेस अलग अलग नाम से भी डिग्री देते हैं। फिर मास्टर्स होता है एमबीएससी 3 साल का, एंड डॉक्टरेट डिग्री भी होती है पीएचडी इसमें वेटरनरी मेडिसिन के अंदर। नेक्स्ट, ये वो इस तरह की जॉब टाइटल्स है, नॉर्मली उनको मिलते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एरियाज है, इसमें थोड़ा डिफरेंट भी मिलेंगे आपको, जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, आर्मी में काफी होते हैं, एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट, तो जहां जहां पे भी जो है जानवर एनिमल से रिलेटेड वर्क होता है, वहां पे इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, सो दैट यू नो एनिमल्स जो है हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। नेक्स्ट, सिद्धा। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि ये आयुर्वेदिक की तरह ये भी एक इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है। द्रविडियन ऑरिजिन है इसका, यानी साउथ इंडिया से निकला है, और इसका जो एंटायर जो लैंग्वेज है लिटरेचर का, वो तमिल लैंग्वेज में है, और अब तो हालांकि इसमें ट्रांसलेशन इंग्लिश वगैरह में भी हो गया है। और तो नॉर्थ में जो ज्यादा पॉपुलर था इंडिया में पुराने जमाने में आयुर्वेद था, और साउथ में जो है सिद्धा था। इसमें वही जो है हर्बल्स है जो ना, प्लांट्स है, उन सबसे जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है मेडिसिन बना के जो है डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट, वही इस तरह के कोर्सेज होते हैं इसमें, बीएसएमएस बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन सर्जरी, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश में जो है 5.5 साल का कोर्स होता है। 9 कॉलेज है इंडिया में, करीब 520 सीट्स अवेलेबल है इसमें। नेक्स्ट, यूनानी बीएमएस। आगे चले, जैसे मैंने बताया कि ये अरब पार्ट जो था, या पर्सिया जो पुराने जमाने में ईरान को बोलते थे, वहां से डेवलप होके इंडिया में आया है, और इसके भी कुछ लोग हैं जो फॉलोअर्स हैं आजकल। इसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी होता है 5.5 साल का, इसमें 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप है, और
कुछ लोग जो है इसमें भी एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, नेचुरोपैथी। नेक्स्ट, आजकल नेचर को लेके काफी सारा जो है लोगों को लगता है कि नेचुरोपैथी इज द आंसर फॉर ऑल आवर जो भी एलिमेंट्स है, बीमारियां, उनको लेके। तो कुछ लोगों का ट्रस्ट रहता है नेचुरली जो चीजें बनती है उनसे। और इसमें करीब 25 कॉलेज हैं जहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चलाते हैं। 1630 वहां पे जो है सीट्स अवेलेबल है। 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट सीट 280 है, प्राइवेट कॉलेज 20 है, जहाँ पे करीब 1350 सीट्स अवेलेबल है। BNY है इसका कोर्स का नाम, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। और इसमें भी नीट के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। 5.5 साल का कोर्स होता है, 4.5 साल वही क्लासरूम और 1 साल का जो है कंपलसरी इंटर्नशिप। नेक्स्ट, योगा, आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है योगा। नेक्स्ट, इसके अलावा जो है बहुत सारे अलाइड कोर्सेज होते हैं मेडिसिन के अंदर। मैंने 4 इसमें खासतौर पे इंक्लूड किए हैं, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और डायग्नोसिस। थोड़ा थोड़ा हम उनके एक 2 मिनट उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, नर्सिंग, सब लोग जानते हैं हॉस्पिटल्स में रोल ऑफ नर्सेज, नर्सिंग स्टाफ का क्या रोल होता है। डॉक्टर के साथ एक काफी क्लोजली वर्क करते हैं, और जो भी डॉक्टर के बाद जो भी नर्स की पूरी मरीज पेशेंट की केयर करते हैं वो सारी नर्सेज ही करती हैं, और मेल और फीमेल दोनों तरह के नर्सेज होते हैं। नेक्स्ट, 15 सेंचुरी से पुर्तगाल से इसका नर्सिंग एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में काफी पॉपुलर किया है। उसके बाद स्पेशली वार्ड्स वगैरह में काफी जो है नर्सिंग एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में 1859 में इंडिया का फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता में ओपन हुआ था। नेक्स्ट, इसमें जो कोर्सेज होते हैं, ANM, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, BSc बेसिक, BSc पोस्ट बेसिक, MSc, MPhil। नर्सिंग में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, उनकी ट्रेनिंग है, ड्यूरेशन है, मैंने इसमें दिया हुआ है। जो डिटेल्स आप जो है और अलग से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या इंटरनेट पे भी हम लोग जो है रेस्पेक्टिव कॉलेजेस उनमें सर्च कर सकते हैं। बट काफी सारे जो है प्रोग्राम नर्सिंग के चलते हैं, और इनको हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स वगैरह में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स मिलते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारा कैरियर जो नर्सिंग में कहाँ पे काम कर सकते हैं वो सब इसके अंदर है, जैसा मैंने बताया आपको कि। नेक्स्ट, तो नर्सिंग का बहुत वाइड एप्लीकेशन है। बहुत सारे इंडिया से जो है अब्रॉड भी जो है काफी नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, एशिया में। और इंडिया इज बहुत सारे नर्सिस जो है इन कंट्रीज के अंदर भेजता है। वहाँ पे सारे हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, हॉस्पिटल्स, डिफेंस सर्विसेज, इंडस्ट्रियल हाउसेज, फैक्ट्रीज, सोसाइटीज, सप्लीमेंटल नर्स, नर्सिंग होम्स, रेलवेज, एरोनॉटिकल जोन, रिसर्च नर्स, ट्रैवल। ये बहुत सारे कैरियर हैं जो नर्सिंग स्टाफ अपना इस एजुकेशन को परस्यू करके कैरियर बना सकता है। नेक्स्ट, फार्मेसी, सब लोग जानते हैं, जो मेडिकल मेडिसिन का जो कैरियर होता है, उसमें जो दवाइयां बनती है, ड्रग्स बनती है, उसके अंदर फार्मेसी एक बहुत मेजर रोल होता है। नेक्स्ट, और फार्मेसी इज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग्स, ड्रग्स बनाना और उनको जो है मरीजों तक पहुंचाना, उन तक, ये सारा काम फार्मेसी के अंदर होता है। नेक्स्ट, वही बी फार्मा कोर्सेज होते हैं, PCM, B, और दोनों ही इसमें फॉलो, दोनों ही इसको ले सकते हैं। और ये लोग जो है कहीं ना कहीं जो है फार्मा इंडस्ट्री में आप कैरियर बना सकते हैं। डिप्लोमा होता है इसके अंदर, डिप्लोमा करके अपना खुद का मेडिकल स्टोर रन कर सकते हैं, ड्रग स्टोर चला सकते हैं अपना। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपी है, जो हम लोग देखते हैं कि आजकल हॉस्पिटल्स में जो है डॉक्टर्स कई बार एडवाइस करते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करें, वैसे एक्सरसाइज करें। कई बार लोग उल्टी गलत एक्सरसाइज करके भी कहीं ना कहीं अपने नुकसान पहुंचा लेते हैं, या हमें कोई चोट लग जाती है। तो लॉन्ग टर्म हीलिंग के लिए कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो पोस्ट सर्जरी या पोस्ट क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो है आपको ठीक होने में, रिकवरी करने में आपकी हेल्प करती है। तो फिजियोथेरेपी इज अनदर एरिया अलाइड जो है मेडिकल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने बताया कि आपकी जो भी पेन एरिया है, सर्जरी के बाद की जो इफेक्ट्स है उनको ठीक करने के लिए, रिकवरी के लिए जो है फिजियोथेरेपी होती है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक फिजियोथेरेपी में जो है BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, और इस तरह के कोर्सेज होते हैं जो मैंने पहले बताया।
अब डायग्नोस्टिक, अब जैसे आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, तो बहुत सबसे पहले डॉक्टर टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। तो ये सारे जो टेस्ट होते हैं, ये सब लेबोरेटरीज में होते हैं, और जो डायग्नोस्टिक स्टाफ है, लैब स्टाफ है, वो सारे टेस्ट करता है, फिर उनकी रिपोर्ट आती है, और उनके बेसिस पे डॉक्टर जो है फर्दर ट्रीटमेंट करता है कि भाई आपके यह प्रॉब्लम है या इसमें ये आपको ट्रीटमेंट मिलेगा इसके अंदर। तो ये डायग्नोसिस में काफी कैरियर बनता है, साथ में इसमें और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो वो नेक्स्ट, diagnosis is the identification of the nature and cause of certain phenomena. तो medical diagnosis is the process of determining which disease or condition explain a person's symptoms and signs. So medical science में diagnosis का काफी रोल है, और आजकल डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट टेस्ट के जरिए डायग्नोस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट, आप एक चीज आती है कि ये सारी चीजें जानने के बाद कि किस तरह के लोगों को मेडिसिन में करियर बनाना चाहिए। तो पर्सनल स्किल्स तो जैसे कि जो वर्क एथिक्स, क्योंकि एथिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्फिडेंस, जब आप मरीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इवन इंजेक्शन लगा रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। कोई भी दवा दे रहे हैं किसी बीमारी में, तो आपको लगना चाहिए कि इससे फायदा होगा मरीज को। तो आपका उस मेडिसिन में आपकी जो नॉलेज है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि नॉर्मली जो भी मरीज या पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो काफी नेगेटिव, उनकी जो कॉन्फिडेंस काफी लो होता है, तो उनको बहुत पॉजिटिवली आपको बूस्ट करना पड़ता है। कई बार कहते हैं कि डॉक्टर से मिलते ही ठीक हो जाती है आधी बीमारी। तो एज ए डॉक्टर यू शुड हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड विच यू ट्रांसफर टू द पेशेंट थ्रू कंसल्टेंसी और ट्रीटमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी है, कई बार डॉक्टर को जो है एक चीज काम नहीं कर रही है तो दूसरी चीज मेडिसिन ट्राई करनी पड़ती है। सो डॉक्टर हैज टू बी फ्लेक्सिबल इन हिज और हर जो है ट्रीटमेंट में। रिसेप्टिव एटीट्यूड होता है, सुनना बहुत पड़ता है आपको मरीज को। बहुत सारे मरीज की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। कई मरीज तो चाहते हैं कि डॉक्टर पहले मुझे अच्छे तरीके से सुने, क्योंकि कई मरीजों की बहुत लॉन्ग हिस्ट्री होती है बीमारी की। तो रिसेप्टिव एटीट्यूड होना चाहिए इसके अंदर कि आप सामने वाले को सुन सके। स्ट्रेस मैनेजमेंट, काफी सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर बहुत लंबा वर्किंग आवर्स होता है। बीमारी कभी भी किसी को कभी भी आ सकती है, कोई कभी भी कॉल कर सकता है। तो डॉक्टर को हमेशा 24/7 ऑन द जॉब रहना पड़ता है, तो काफी स्ट्रेस रहता है। तो हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। टाइम मैनेजमेंट, अब आपको टाइम मरीज को भी देना है, अपनी पर्सनल लाइफ को भी देना है, फैमिली को भी देना है, दूसरा आपको आगे पढ़ाई भी करनी है, नई नई चीजें सीखनी भी है। सो हाउ यू कैन मैनेज दिस एंटायर टाइम ऑफ योर 24 आवर्स। तो ये पर्सनल स्किल्स एक डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स अगर बात करें तो एम्पैथी एक बहुत बड़ा जिसका तरह की ट्रेट या गुण जो है डॉक्टर्स के अंदर होना चाहिए, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि आप दूसरों के साथ कैसे आप संवेदनशील हो सकते हैं, या करुणा जिसे बोलते हैं हिंदी में, कि आपके अंदर करुणा है, आपका कि आपका दिल सॉफ्ट होना चाहिए, कि यार आप कैसे मरीज के साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बीमारियों से या बीमारों से, मरीजों से, पेशेंट से बहुत बात करना होता है आपको। वो हर लैंग्वेज के लोग, लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, तो आपको बहुत रूरल एरिया से इवन ट्राइबल एरियाज में काम करना पड़ता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आपको टीम वर्क, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में बड़े सेटअप में काम करते हैं, यू हैव टू वर्क विद सुपर स्पेशलाइजेशन, डायग्नोस्टिक लैब्स, नर्सिंग स्टाफ, और भी बहुत सारे जो है स्टाफ, उनसे साथ काम करना पड़ता है। तो टीम वर्क भी आपके अंदर होना चाहिए। So these are the aptitude which are required to become a medical practitioner. So next. So thank you so much. This was all about from my side. I know it's a long presentation, but I have tried to summarize it as many things as I could. And if you have questions, we can take it later on after Sushma finishes her part. Okay, Sushma, it's over to you. Thank you so much. Sure, thanks. Yeah, so I'll get started quickly. Some part we had covered in yesterday's slide because research is pretty much common in PCM and technology and biology as well. So similar topics that we are going to cover: what are the types of research options, mindset which is required, research pathway, and rewards and recognition, and different research institutes. सो आज ज़्यादा फोकस हम लोग बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की तरफ करेंगे। कल हम लोगों ने इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड फिजिक्स रिसर्च के बारे में देखा था। सो रिसर्च किसी भी फील्ड में हो, साइंसेस के कोई भी फील्ड, एंड
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी में भी हो, 3 टाइप की रिसर्च होती है टिपिकली। एक प्योर साइंस में रिसर्च होती है जो इमीडिएटली कहीं एप्लीकेबल नहीं होती। सो दिस इज जनरली डन बाय बिग यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट और एकेडमिया। सेकेंड टाइप होती है जो मिक्स रहती है, प्योर साइंस एंड अप्लाइड साइंसेस, जो इन नियर फ्यूचर जिसको आप कमर्शियलाइज एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या सर्विसेज बना के सेल कर सकते हैं। ये वो टाइप की रिसर्च होती है जिसमें कंपनीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ये रिसर्च करते हैं। एंड थर्ड इज प्योर प्योर अप्लाइड साइंस, जिसमें कि आप दीज आर टिपिकली डन बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, और वो अपने नए नए प्रोडक्ट या सर्विसेज डेवलप करते हैं एंड दे आर कमर्शियलाइज्ड। प्योर साइंस में यदि बात करते हैं तो इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड मेनी अदर साइंसेज आर देयर। एज वी डिस्कस्ड, इसमें बहुत सारा वेटनरी साइंस एंड मेनी अदर्स कैन कम। मिक्स साइंसेज में एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, स्पोर्ट्स मेडिसिन, गेमिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस आर पॉसिबल, राइट। एंड आपको बता दूं कि जो डायरेक्टली जैसे मेडिसिन आप कर लें, अभी आपने मनोज को सुना डिटेल में, मेडिसिन वगैरह आप कर सकते हैं, एंड सिमिलरली इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बट रिसर्च एक अलग ही ब्रांच है और उसमें एक अलग ही जो मजा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें कुछ आप इनोवेटिव करते हैं, कुछ नई चीज ढूंढते हैं। सो रिसर्च का एक अलग ही ट्रैक होता है, एक अलग ही मजा होता है। ऑप्शंस क्या होते हैं, यदि हम आज बायोलॉजी की बात करें, कल हमने इसी चीज में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में फोकस किया था। यदि बायोलॉजी रिसर्च की बात करते हैं तो जो फर्स्ट टाइप का था जिसमें एकेडमिया मतलब यूनिवर्सिटी ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि वो इमीडिएटली कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसमें सेल बायोलॉजी, एक एक सेल की स्टडी, ये सेल किस टाइप का है, इस सेल में क्या हो सकता है, उस टाइप की चीजें स्टडी होती हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, लॉट ऑफ मैथ इज रिक्वायर्ड इन दिस, एंड उसके साथ वो बायोलॉजी का स्टडी करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स रिलेटेड की के बारे में स्टडी होती है। न्यूरोबायोलॉजी होती है जो ब्रेन की बायोलॉजी के रिलेटेड स्टफ के बारे में बात करता है, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, इस चीज में ऐसी कैसी रिएक्शन होती है, वो सब। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, देन जेनेटिक्स, sorry, I have repeated that. Then we also second type of research which is happening, जो academics और इंडस्ट्री एक साथ में काम करती है, वो मटेरियल्स, माइक्रोबायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स एंड ह्यूमन डिजीजेस, इस पे काम हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल्स डेवलप हो रहे हैं। कई अ फ्रेंड ऑफ माइन, एक मेरे फ्रेंड हैं, वो 3D प्रिंटिंग में काम करते हैं, जो ऑर्गन प्रिंटिंग करता है। तो पहले कैसे होता था कि यदि आपका किसी को वॉल्व डालना है, हार्ट पे सर्जरी के बाद वॉल्व डालना है, तो वॉल्व एक फिक्स शेप का होगा, सारे लोग उसी टाइप का प्रोड्यूस करेंगे और उसका शेप एंड साइज सेम होगा। सो यदि कहीं किसी को भी लगाना है तो उसी टाइप का लगाना पड़ेगा। थोड़ा प्रॉब्लम्स आती थी कार्डियक सर्जन को, टाइम ज्यादा लगता था। नाउ 3D प्रिंटेड है। सो यहाँ से जैसे यदि आपने डेंचर का देखा होगा तो वो दांत देखते हैं आप, कैसा स्ट्रक्चर है पूरा, और उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड डेंचर बनता है। वैसे ही आजकल प्रोडक्ट्स, हार्ट वगैरह के वॉल्व एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बिल्कुल 3D प्रिंटेड कस्टमाइज प्रिंटिंग हो रही है। सो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। सो लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग इन biological materials, microbiology पे स्टडी होता है, कैंसर बायोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देन एज मनोज मेंशन, मेडिकल डिवाइसेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं, और बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च जो है वो कंपनीज कर रही हैं, लाइक जनरल इलेक्ट्रिक, दे हैव मेडिकल डिवाइसेस, और वो बहुत ज़्यादा टाइम, मनी एंड इंजीनियर्स एंड मेडिसिन प्रोफेशनल्स को डिप्लॉय करते हैं मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस रिसर्च पे। देन वायरसेस पे आपको पता ही है, कोरोना वायरस, लॉट ऑफ रिसर्च इज हैपनिंग, एंड अलोंग विद दिस देयर आर मेनी अदर वायरसेस जिस पे काम हो रहा है, वायरोलॉजी जिस की स्टडी को बोलते हैं, वैक्सीन्स पे। देन ह्यूमन हेल्थ पे, जनरल हेल्थ जो है, फिर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी काफी सारा रिसर्च हो रहा है, बिकॉज लार्ज स्केल पे आपको मेडिसिन मेडिसिन एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए
प्रोसेस पे, डिवाइसेस पे काम चल रहा है। देन सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ साइंसेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइफ साइंसेज, इस पे भी बिल्कुल बहुत बहुत इनोवेटिव रिसर्चेस आर हैपनिंग। सो आप इनमें से कोई भी फील्ड को रिसर्च के लिए चूज कर सकते हैं। एंड ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग और एडिशनल फील्ड्स आर आल्सो देयर। अब जैसे मैंने जेनेटिक्स एक बताया था, उसमें जेनेटिक्स के अंदर यदि आप जाते हैं तो किस टाइप की रिसर्च हो रही है। सो एक साइंटिस्ट जो होता है वो जेनेटिक्स पे रिसर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके एक पोर्शन पे रिसर्च कर रहा है। सो जैसे कि जेनेटिक्स में जीन्स पे रिसर्च होती है, जीन एडिटिंग पे रिसर्च होती है कि एडिट कर दो कई कई जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, तो वो जीन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो हो सकता है कि डिजीज क्योर हो जाए या नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो। तो उस टाइप पे हेरिडिटरी इवोल्यूशन, बेटर फीचर्स कैसे ला सकते हैं। सम पीपल आर वर्किंग की आईज ब्लू हो जाए, सम पीपल आर वर्किंग की अच्छे बाल हो जाएं। सो दीज काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, सो एक एक चीज के अंदर बहुत छोटे छोटे डिटेल में जाके रिसर्चेस हो रही हैं। यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो दैट एजिंग पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है कि आप आपने प्रोडक्ट्स तो देखे होंगे, ये एंटी एजिंग क्रीम है लाइक दैट। सो एजिंग स्टॉप करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उसमें बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं सेल डिवीजन पे। और ये सब इंटरेस्टिंग एरियाज हैं। फिर इसके लिए मशीन्स भी हैं। सो एक्सरे, मॉडिफाइड एक्सरे मशीन्स आर रिक्वायर्ड, एक्सरे इमेजिंग, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में जाके देखना है। देन माइक्रोस्कोपी, मतलब माइक्रोस्कोप भी चाहिए, वो अलग टाइप का चाहिए, बहुत डिटेल में समझने लायक। तो इन टाइप के डिवाइसेस पे भी काफी सारा मेडिसिन रिलेटेड डिवाइसेस पे काम चल रहा है। and I have taken these pictures from Massachusetts Institute of Technology, US. So credit goes completely to that institute for these pictures. Now let's talk of chemistry. We discussed this last evening as well. Chemical biology, computational and theoretical chemistry, green chemistry, atmospheric chemistry, organometallic compounds. So बहुत bright यदि आपको कुछ चाहिए, आजकल आप यदि क्लॉथ देखेंगे या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन फील्ड में यदि आप देखते हैं तो जो वर्कर्स रहते हैं वहाँ, वो सब एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स जो अलग से ही दिख जाए, रात में भी दिख जाए, उस टाइप के कलर्स पहने रहते हैं, बिकॉज इट इज अदरवाइज रिस्की। तो उस टाइप की चीजों में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स चाहिए रहते हैं, और उसकी रिसर्च काफी एडवांस लेवल रिसर्चेस आर हैपनिंग। फिर मटेरियल साइंस, नैनो साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, डिफेंस मटेरियल्स, इन सब पे रिसर्च चल रही है। इवन बायो वॉरफेयर, इफ यू हैव हर्ड, काफी सारे जो कंपनीज बोल सकते हैं या फिर काफी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के रिसर्चेस में दे आर आल्सो ट्राइंग टू यूज केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर। सो उसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर में आप क्या करेंगे, कोई कोई टाइप के वायरसेस कहीं आप किसी आपका जो जिससे भी आपका वॉर चल रहा है वहां आप वो डाल सकते हैं। and before the other country is able to make vaccines or any kind of solution for that, हो सकता है कि वो कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए। सो इस टाइप के डिफेंस रिसर्च में, दो इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड वर्क, बट इस टाइप के रिसर्चेस भी हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली यदि हमें इस टाइप के वायरस और बायो वारफेयर या केमिकल वारफेयर नहीं बनानी है, तो हम उसका एनेक्डोट तो बनाने के लिए हमें रेडी होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी कंट्रीज में ऐसी रिसर्च चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन हमें बना के तैयार होना चाहिए। सो उस टाइप के रिसर्चेस भी हो रहे हैं। मैंने कल भी बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। प्रिंगल्स यदि आपने खाए होंगे, एक टाइप के चिप्स होते हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है जो उसको एक्स्ट्रा क्रंच प्रोवाइड करता है। क्रंची मंची लगते हैं वो, और इसमें टेस्ट भी अच्छे से रिमेन होता है, हर जगह स्प्रेड ओवर होता है। तो इस टाइप से बायो मैथ एंड केमिस्ट्री की रिसर्च हो रही है, एक साथ आपको आना चाहिए। Another thing, you can say bio and math के लिए researchers are developing a clearer picture of the molecule एनवायरमेंट ऑफ अवर स्किन सरफेस। सो इतने डिटेल में यदि आपको जाके रिसर्च करना है तो क्रक्स इज मैथमेटिक्स। एंड इसलिए मैं एनकरेज करूंगी जो स्टूडेंट्स
करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं, वो प्रेफरेबली पीसीएमबी कॉम्बिनेशन लें एंड उसके हिसाब से करें। बिकॉज यदि आप बायो में भी रिसर्च करते हैं तो समवेयर आपको मैथ्स जरूर टच करेगा। मैथ्स इज द कोर ऑफ ऑल साइंसेस। सो आप यदि स्पेसिफिक रिसर्च एरिया में ही एक्सप्लोर कर रहे हैं करियर को, सो आपके लिए बेटर रिकमेंडेड ऑप्शन इज पीसीएमबी इन योर क्लास 12th 11th एंड 12th। माइंडसेट की बात करते हैं तो यू हैव टू बी रियली इनोवेटिव, है ना। आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते आना चाहिए कि इसको ऐसा देख के क्या होगा, इसको ऐसा देख के क्या होगा, इस टाइप के सॉल्यूशन या अलग अलग तरीके से। यदि सब लोग उसी तरीके से सोचते हैं तो वो कोई नया सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। देन इंक्विजिटिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको और नो मोर अबाउट समथिंग, ये एक कैपेबिलिटी या इंटरेस्ट होना चाहिए। एनालिटिकल कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें रखी हैं, 10 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उससे मीनिंग क्या बनता है, एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं आप, वो आपको एनालिटिकल कैपेबिलिटी होती है। परसिवरेंस होना चाहिए। रिसर्च में आज आपने चालू की, कल आपको रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इफ यू रियलाइज दैट सो मेनी पीपल आर डूइंग रिसर्च बट नोबेल प्राइज कितने लोगों को मिलता है। सो इफ यू टॉक ऑफ फिजिक्स, हर साल में एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिलता है या टीम को मिलता है, 2 से 3 लोगों को मैक्सिमम मिलता है नोबेल प्राइज एक साल में। सो इतने सारे 100 सालों में हमें 100 लोगों को मिला होगा, ज्यादा से ज्यादा 150 लोगों को मिला होगा फिजिक्स में नोबेल प्राइज। बट काम कितने कर रहे होंगे, तो हजारों रिसर्चर्स आर वर्किंग। सो परसिवरेंस की बात है कि आपको रिजल्ट आए या ना आए, उसको कंटिन्यूअसली करने में इंटरेस्ट और वो जर्नी में इंटरेस्ट होना चाहिए। वो जर्नी आपको अच्छी लगनी चाहिए रादर देन रिजल्ट। रिजल्ट तो आएगा, नहीं भी आ सकता है, बट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देन साइड इम्पोर्टेंट फीचर्स दैट यू शुड हैव और एट्रीब्यूट्स यू शुड हैव इज कोलैबोरेटिव टाइप ऑफ वर्क, फोकस्ड वर्क, एडेप्टेबिलिटी एंड फोरसाइट। सो आगे देखने की कैपेबिलिटी भी आप में होनी चाहिए। keen power of abstraction, problem solving में interest, voracious, you should be voracious reader, बहुत सारे इधर उधर की चीजें, wide reading आपकी होनी चाहिए। बिकॉज कहाँ किस चीज का काम आ जाए वो आपको अभी आप कोई नहीं बता सकता। फिर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, स्केप्टिसिज्म, डाउट कि नहीं ये ऐसा क्यों है, ऐसा हो सकता है कि ये गलत बता रहे हो। सो सेल्फ क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। सो डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। देन परसिस्टेंट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, वो भी बहुत जरूरी है। आप ऑल ओवर द प्लेस होना चाहिए बट आपका थोड़ा गोल भी कि इस चीज के लिए मैं अलग अलग तरीके से सोच रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। इंडिपेंडेंस इन वर्क एंड स्टडी, अकेले जरूरी नहीं कि आपको एक बहुत बड़ी टीम मिले। हो सकता है कि एक बड़ा सा प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए 5-6 टीम्स काम कर रही होंगी। सो आई होप एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड हैव आल्सो सीन मिशन मंगल मूवी। उसमें कितनी सारी टीम्स चाहिए, एक बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए अलग अलग टीम्स चाहिए। सो कोई इंजन, फ्यूल इंजन एफिशिएंसी में काम कर रहा है, कोई उसको लाइट वेट बनाने में काम कर रहा है। सो अलग चीजें। सो जो आपको टीम्स के साथ कोलैबोरेट जरूर करना है बट आपको इंडिपेंडेंटली अपना काम करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा कोई हैंड होल्ड करे, है ना। एंड देन डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज भी होनी चाहिए। So the other day I was reading about a scientist, I think उसमें उनकी लैब में 10,000 चीजें रखी हुई थी, जिसमें कि हॉर्स हेयर से लेकर कुछ भी चीज, उन्होंने ये सोचा था कि हो सकता है कभी भी कोई भी चीज की कैरेक्टर मुझे देख के कुछ और चीज स्ट्राइक हो जाए। सो इस टाइप से उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाई थी। सो आपको डाइवर्स इंटरेस्ट और इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए। नाउ पाथवे करना कैसे है, करियर कैसे बनाना है रिसर्च में, आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। इट कुड बी बीएससी, बीई, बीटेक, बी फार्मा और एनीथिंग। बैचलर डिग्री आपको लेनी है, उसके बाद उसका मास्टर्स करना है और उसके बाद आपको उसमें पीएचडी, पोस्ट डॉक एंड कंटिन्यूस रिसर्च करते रहना है। ग्रेजुएशन के लिए करने के लिए बेस्ट तरीका, यदि आप केवीपीवाई क्वालिफाई हो जाएं, आपको बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंडिया में एडमिशन मिल सकता है। इफ यू डोंट क्वालिफाई, डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू गिव अप।
आप किसी अच्छे कॉलेज में, आपके लोकल एरिया में, सिटी में आप अच्छे कॉलेज में बीएससी, बीटेक, बीई या किसी और बी फार्मा में ग्रेजुएशन में एंट्री एंट्री ले सकते हैं। कई कई कॉलेजेस क्लास 12th के मार्क्स से भी एंट्री लेते हैं, बट नाउ एनटीए जो मनोज ने बताया, वो दे आर ट्राइंग टू हैव अ वन सिंगल क्वालिफाइंग एग्जाम। बिकॉज क्या होता है, यदि मुझे दिल्ली कॉलेज में इंटरेस्ट है बट मेरा महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जाम थी, सो इफ माय मार्क्स आर लेसर, महाराष्ट्र बोर्ड में ओवरऑल मार्क्स कम आए हैं सबके, तो यदि और दिल्ली में ज्यादा आए हैं, उनका बोर्ड अलग है इसके लिए, सो मे बी आई विल नॉट गेट देयर। वो करते हैं कई बार, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, बट फिर भी किसी को नुकसान नहीं होए, इसलिए एनटीए प्लान करी कि एक एडमिशन फॉर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए भी करेगा। इंजीनियरिंग के लिए तो ऑलरेडी है, मेडिकल साइंसेस के लिए ऑलरेडी एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है। देन मास्टर्स के लिए आपको गेट एग्जाम है, डिफरेंट कॉलेजेस आल्सो हैव देयर वेरियस एंट्री एग्जाम फॉर मास्टर्स। जैम एक एग्जाम होता है जो आईआईटी के लिए मास्टर्स करने के लिए, आईआईटी में मास्टर्स करने के लिए एग्जाम होता है आफ्टर आप ग्रेजुएशन के बाद। फिर पीएचडी आपको करना है, उसके लिए जेआरएफ, एसआरएफ, एनईटी, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे अपने सब्जेक्ट में आपको वो एग्जाम देनी पड़ती है। उसमें भी प्लीज नोट दैट उसमें भी मेंटल एबिलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो हम लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको 6 से 10 तक मेंटल एबिलिटी का मैंडेटरी कोर्स रखते ही हैं। सो वो लोग वो क्लास अटेंड करते हैं, जिससे कि उनका रीजनिंग स्ट्रांग हो जाता है, मेंटल कैपेबिलिटी एनहेंस हो जाती है। सो दैट इज an important aspect of our classes as well. नाउ रिसर्च पाथवे, बायोलॉजी, स्पेशली बायोलॉजी के लिए आप केवीपीवाई एग्जाम दे सकते हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। जेई एडवांस से भी एडमिशंस होते हैं। यदि आप गवर्नमेंट ओलंपियाड्स जीतते हैं, दीज आर नॉट the olympiads which private companies conduct, but बहुत सारे गवर्नमेंट ओलंपियाड कंडक्ट होते हैं, जिसमें कि बहुत ब्यूटीफुल उसकी जर्नी रहती है। यदि फर्स्ट आपका रीजनल लेवल सिलेक्शन होता है, उसमें यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप नेशनल लेवल पे जाते हैं। ओके, नेशनल पे सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में है, दोनों इंस्टीट्यूट, वहां आपको साइंटिस्ट ट्रेन करते हैं। तो यदि आपका रिसर्च यदि फोकस एरिया है, तो गवर्नमेंट ओलंपियाड्स लेने से अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता है। ओके, सो आप बायोलॉजी में ओलंपियाड ले सकते हैं, बायोलॉजी ओलंपियाड ले सकते हैं, केमिस्ट्री ओलंपियाड कर सकते हैं, फिजिक्स कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड्स, मैथ ओलंपियाड, सारे ओलंपियाड्स होते हैं। ओके, सो यदि आपको ये इंटरेस्ट है, तो आप ओलंपियाड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आई थिंक 2-3 years बैक एक स्टूडेंट था, कैलकाटा का था मोस्टली, आई डोंट रिकलेक्ट, बट उसने मैथ ओलंपियाड दिया, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। ही वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, इंडिया की टीम से गया था। जैसे स्पोर्ट्स में इंडिया टीम भेजती है, राइट, अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी टीम भेजती है, वैसे ही हम साइंस ओलंपियाड में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीम्स भेजती है। तो वो बंदे ने, द पर्सन स्टूडेंट वाज हैड टेकन मैथ ओलंपियाड, और उसने मैथ का जो ओलंपियाड पेपर में एक जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से सॉल्व किया था। और ये जो पेपर रिव्यू करते हैं या जो इन्विजिलेट और चेक करते हैं पेपर, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं। तो वो साइंटिस्ट को उस स्टूडेंट का मेथड मेथड ऑफ रिसर्च, भले आंसर करेक्ट आए कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं था, उसका वो व्यू बहुत अच्छा लगा। तो उस स्टूडेंट को एमआईटी तो नहीं था, कोई और दूसरे प्रोफेसर ने अपने अंडर में काम करने के लिए बुलाया था। और आपको 12th के बाद यदि ऐसा एक्सपोजर मिलता है, तो व्हाट मोर यू वांट, राइट? दीज आर द प्रोफेसर्स हु आर बेस्ट इन क्लास काइंड ऑफ प्रोफेसर। सो आप गवर्नमेंट ओलंपियाड को सीरियसली ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। फिर गूगल साइंस फेयर एंड ऐसे बहुत सारे हैं, बट गूगल साइंस फेयर एक इम्पॉर्टेंट है। पहले इसको इंटेल साइंस फेयर भी मतलब इंटेल भी कंडक्ट करती थी। और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इंटेल साइंस फेयर उस समय सिर्फ यूएस के लिए होती थी, और उसमें जितने भी लोग होते थे, क्लियर होते थे, उनको आगे चल के उनकी लाइफ में नोबेल प्राइज मिलता था। और ये
इंटेल साइंस फेयर लेने के समय आपकी एज क्या होती है, 15 16 17, बट वो कंपटीशन ही इस टाइप की होती थी कि आपको उसके अंदर घुसना रहता था, जिस भी टॉपिक में आप रिसर्च करो उसके अंदर घुसना रहता था। तो उसी टाइप का ये गूगल साइंस फेयर भी है। एडवांटेज है कि यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो कई बार आपको फाइनेंसिंग भी मिल जाती है, वेरी अर्ली ऑन आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ओके। एंड अदरवाइज आपको पूरी मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्चिंग आपको समझ में आ सकती है। सो दिस इज द वे दैट यू हैव टू टेक। नेसेसरी नहीं है कि आप बिल्कुल जेई के पीछे पड़े रहें, नीट के पीछे पड़े रहें, आप दूसरे ट्रैक भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आप आईआईएससी में ही सिलेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप प्लेन बीएससी कहीं से भी करके, अच्छे कॉलेज से करके, आप आगे अपना रिसर्च में करियर श्योरली बना सकते हैं। सो कई लोग यदि नहीं हुआ कुछ सिलेक्शन तो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, आपको जो करेक्ट फीचर्स एट्रीब्यूट्स जो हम लोगों ने बताए यदि वो आप में हैं, तो आपको सक्सेस आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। इसलिए डू नॉट कैलिब्रेट और try to see yourself only with those who are qualifying in JEE and all that। जेई ही जेई करके जेई एडवांस हो गए, जरूरी नहीं है कि आप साइंटिस्ट बनने के कटआउट हैं, ओके। सो डोंट unnecessary put yourself in a pressure competition। नहीं करना है हमें, राइट। सो हमें प्रेशर कुकर नहीं बनना है, किसी मूवी में था ना, वो नहीं करना है, ओके। अपने पेस पे आप रिसर्च में जाओ, हाँ मेहनत 100% करो, पूरा 100% डाल दो, उसके बाद रिजल्ट कुछ भी आने दीजिए, डोंट वरी मच। यदि आपको टेनेसिटी है, परसिवरेंस है, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब मैं ये एक ऐसे इंटरेस्टिंग चीज लगी, मुझे लगा कि ये व्यू आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने डाला है। इसमें फर्स्ट लोगो यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो वो बीएचयू, आईआईटी बीएचयू का है। सेकंड इज माय रेवर्ड इंस्टीट्यूट, माय एंड मनोज's रेवर्ड इंस्टीट्यूट, फ्रॉम वेयर वी हैव डन मैनेजमेंट। सो रियली रियली प्राउड ऑफ अवर इंस्टीट्यूशन। एंड देन उसके बाद हार्वर्ड का लोगो डाला है। तो ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ इस स्लाइड से, ये है कि एक मेरा फ्रेंड भी है और आज बहुत सीनियर लेवल पे, यंग गाय बट ही इज एट अ वेरी सीनियर लेवल। तो उसने आईआईटी बीएचयू से बी फार्मा किया, उसके बाद एक्सपीरियंस लिया फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, उसके बाद मैनेजमेंट किया, उसके बाद फिर से एक्सपीरियंस लिया डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, और उसके बाद उसने हार्वर्ड से मेडिकल हेल्थ पे उनका एक कोर्स रहता है वो किया, और उसके बाद आज वो एक बहुत अच्छे स्टैंडिंग पे जॉब कर रहा है। एंड ही इज लीडिंग एन इंस्टीट्यूट वेयर उसका मैनेजमेंट नॉलेज भी काम आ रहा है, उसका फार्मास्यूटिकल नॉलेज काम आ रहा है, उसका एक्सपीरियंस काम आ रहा है, एंड वो रिसर्च ओरिएंटेड पाथ पे है। सो लकीली व्हाट आई विल एडवाइस कि ऑल ऑफ यू जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी अवेलेबल है, ओके। सो आप थोड़ा सा बच्चों के साथ पेरेंट्स आपस में डिस्कस कीजिए। लकीली वी आर इन द एंड ऑफ द ईयर, तो आप डिस्कस करो और उसके बाद यू कैन कम बैक टू अस फॉर वन ऑन वन काउंसलिंग विद मनोज एंड मी। हम लोग आपको एक एग्जैक्ट पाथ बना के देंगे कि आपको पीएचडी तक का पाथ बना के देंगे, उसके बाद हम बैक ट्रैक करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू सी कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है, सो दैट नो स्टूडेंट फील्स डिजेक्टेड कि मेरा ये नहीं हुआ अभी बस एंड ऑफ द स्टोरी, नथिंग लाइक दैट, ओके। आप बस मेहनत करते रहो, अपना 100% डालो, विथ हैंड ऑन योर हार्ट, पुट एवरीथिंग दैट यू कैन एट दिस पॉइंट। आप आज नहीं तो कल 100% सक्सेसफुल हो गए। सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शो दिस थिंग। सेकेंड जो मैंने डाला हुआ है वो किस किस टाइप के रिसर्चेस चल रहे हैं, वो ऐसा है कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिमुलेशन, इस टाइप का कोर्स अवेलेबल है। मतलब इतने डिटेलिंग कोर्सेस है, ड्रग डिस्कवरी इन न्यूरो साइंस, इतना स्पेसिफिक कोर्सेज आर अवेलेबल इन इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स अब्रॉड। हाँ, सो आप इन टाइप की चीजों, और कई बार क्या होता है कि बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग लाइक अ हर्ड मेंटेलिटी, जहां जनता जा रही है हम वहां जा रहे हैं। बट यदि हम ऐसा डिजाइन कर लें कि ओके फर्स्ट लेवल पे मैं बीएससी बायोलॉजी विद केमिस्ट्री या बी फार्मा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टैनफोर्ड में जाके ये कोर्स करूंगा,
या एमआईटी में जाके कोर्स करूंगा या एम्स में जाके कोर्स करूंगा, तो हम उस टाइप का भी हमारा करियर प्लान कर सकते हैं। डोंट जस्ट सी व्हाट इज अपियरिंग ऑब्वियसली, थोड़ा और अंदर में डिटेल में जाके करिए। उसके लिए आपको सर्टेनली काउंसलर्स की जरूरत हो सकती है। यदि आप खुद से कर सकते हैं तो वेरी गुड। इफ यू डोंट हैव कैपेबिलिटी, फील फ्री टू कनेक्ट विथ us and we will go into those kind of details and आपको वहाँ के स्पेसिफिक करियर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आए और वो आपका करियर अश्योर्ड, इंटरेस्टिंग एंड रियली फुलफिलिंग along with good money options भी हो सकता है। Now rewards and recognition I am repeating except that I have added one more। जो आप लास्ट में देख रहे हैं वो रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन का है, रॉयल केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट, और ऐसे उनके बायोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स भी हैं। और ये तो बहुत छोटा सा कलेक्शन है, देयर आर इनफाइनाइट ब्यूटीफुल प्राइजेस एंड ये अचीव करने में जो प्राइड है वो अलग ही बात होती है, राइट। सो दीज आर सम रिवार्ड्स। इंस्टीट्यूट्स मैंने कल भी बात किए थे, वर्ल्ड वाइड मनोज ने जो बताए थे मेडिसिन में वही टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं। एमआईटी इज देयर, देन कैलटेक, हॉपकिंस, then some institutes in London are also very famous, so we have already covered those। but यदि इंडिया फोकस देखते हैं तो इसरो इज वन इंस्टीट्यूट, सीएसआईआर, डीआरडीओ, BARC, ICMR, TIFR, and I'm not reading all of them because आपको ये presentation we are already live on Facebook, आप वहाँ भी देख सकते हैं, नहीं तो हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे। otherwise you can write to us and we can email you the presentation as well। so I'm not reading, but इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे interesting researches चल रहे हैं। अभी इंस्टीट्यूट रैंकिंग की बात करते हैं। ये इंडिया का इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यदि some just under suppose if you don't get through in any of the good colleges, then मुझे अब सेकंड बेस्ट में देखना है, मेरी रैंकिंग कैसी देखनी है मुझे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्रेमवर्क बनाया है और वो रैंकिंग पब्लिश करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की, डिफरेंट कॉलेजेस की, विच विल ऑल्सो एंड ओवरऑल overarching ranking also for different universities and all। so उसमें इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, जनरल कॉलेजेस फॉर मेडिसिन एंड आर्ट्स है, जनरल कॉलेज फॉर साइंस एंड आर्ट्स है, मेडिकल है, लॉ कॉलेजेस है, आर्किटेक्चर, डेंटल, इन सब की रैंकिंग वो प्रोड्यूस करती है। तो यदि आपको कंफ्यूजन है कि ओके आई हैव स्कोर्ड दिस मच, दिस इज माय overall score, which is the best college that I can get into, we can refer to these ranks and certainly look for the top best college for you। सो इसमें जस्ट एक सैंपल ऑफ कॉलेजेस दिया था। मिरांडा कॉलेज, लेडी श्री राम, दीज आर टॉपिंग द लिस्ट। there are many more, by the way, those who are from Maharashtra, because we have people from all across, उसमें फर्ग्यूसन कॉलेज जो पुणे में है वो भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग पे है। सो आप वहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप एस्ट्रोफिजिक्स, नहीं तो एस्ट्रोबायोलॉजी, इस टाइप के रिसर्च में भी आप जा सकते हैं। पुणे में आयु का भी है, पुणे में एनसीएल भी है। सो पुणे इज ऑल्सो अ हब सिटी फॉर एजुकेशन। जैसे सीएसआईआर मैंने बताया था, इसमें बहुत सारे उनके कम से कम 70-80 इंस्टीट्यूट्स हैं। सो मटेरियल्स एंड प्रोसेस इंस्टीट्यूट है, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। सो यदि आपका बहुत स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, एरोमा थेरेपी आपने सुना होगा, एंड फ्यू डेज बैक आई वाज रीडिंग दैट जापान में उन्होंने एक फॉरेस्ट टूरिज्म चालू किया। ओके, so they take you to different forests एंड पीपल स्टार्टेड हीलिंग। उनको ठीक, मतलब उनके जो उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी डिजीज है या कुछ भी एलिमेंट्स है, वो ठीक होने लगा। तो देन रिसर्चेस वर हैपनिंग कि ये कैसा हो रहा है। तब पता चला कि जब आप वो फॉरेस्ट में वॉक करते हैं तो हर प्लांट की एक अलग स्मेल होती है। आप नो, यदि कई लोग ऑब्जर्व करते हैं, कई लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट स्टिल यू आर स्मेलिंग दोज केमिकल्स। ओके, दे एमिट केमिकल्स, और वो
उस केमिकल के कारण आपको कुछ तो कुछ हीलिंग हो रही है। ओके, सो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में इंस्टीट्यूट है। अब इतने डिटेल में जाके यदि आप रिसर्च करते हैं, इफ दिस इज एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट, व्हाट मोर यू नीड, राइट? सो वो आप कर सकते हैं। डीआरडीओ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसमें भी काफी सारे रिसर्चेस चल रहे हैं। इफ यू टॉक ऑफ बायो और लाइफ साइंसेस रिलेटेड, लाइफ साइंस टेक्नोलॉजी पे उनका काफी सारा बड़ा सा रिसर्च चल रहा है, so that we can look into if you're interested in biology. अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च के बारे में बात करें तो जो बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर बी फार्मा कर रहे हैं, उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स इट इज ए पेड इंटर्नशिप, समटाइम्स इट इज नॉन पेड इंटर्नशिप्स, राइट? सो आई विल एनकरेज कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन, मतलब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इंसिस्ट करें कि रादर देन डूइंग सम प्रोजेक्ट विच इज रीडिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, गो आउट एंड डू इंटर्नशिप। आप या तो इंस्टीट्यूट आपको हेल्प कर सकते हैं या आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बाहर से इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे, ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच कर सकते हैं कि मुझे इंटर्नशिप में इंटरेस्ट है। मैनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वेलकम सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद पीएचडी फेलोशिप्स भी देते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट में तो होती है, यूनिवर्सिटीज में तो होती ही है, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें हेल्प करते हैं। लाइक कमिंस कॉलेज इन पुणे, कमिंस कॉलेज विच इज ए विमेंस कॉलेज, वो लोग विमेन को, उनके स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए स्पॉन्सर करते हैं, यूएस एंड ऑल। एंड उसके बाद आपको उनके कंपनी में कुछ 2 years काम करना रहता है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वेयर ऑर्गेनाइजेशंस आर स्पॉन्सरिंग फॉर योर पीएचडी। उसके बाद आप रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप बात करें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आजकल किस एरिया में फोकस कर रहे हैं, आई हैव लिस्टेड फ्यू, लिस्ट इज एंडलेस, है ना, बहुत कम मैंने डाले, बहुत इनफाइनाइट लिस्ट है, बट जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए, इंटरनल मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, इन्फ्लेमेशन एंड इम्यूनोलॉजी, रेयर डिजीजेस, ड्रग सेफ्टी, जीन थेरेपी, डीएनए डैमेज रिपेयरिंग, these are some areas where even private organizations are spending huge amount of dollars and doing lot of research। तो आप इन areas में भी associate हो सकते हैं। Again, as I said yesterday, this is a very, very, very miniaturized version of a beautiful galactic universe of research. And I would certainly want parents to encourage their children to get into research. बहुत फुलफिलिंग रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी रहता है। सो रादर देन, मतलब जिसको इमीडिएटली कुछ जरूरत नहीं है कि बीटेक करके आपको जॉब में जाना है, यदि आप उसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो प्लीज एनकरेज देम टू गेट इनटू रिसर्च। एंड विद दैट आई विल एंड माय प्रेजेंटेशन, एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू to because you gave us a very patient hearing. We are open to questions, and then we will also explain you about our next sessions. Thank you so much. Please chat your questions or raise your hand and I will open you for questions. Manoj, there's one question which is coming up on Yeah. cosmetic surgery related stuff. So people want to explore that. Do you want to take that up? What exactly is the question? Uh, what is the scope in cosmetic surgery? So maybe related to plastic surgery and Uh, I think in details, we can, I cannot right now, tell the detail or the scope of cosmetic or plastic surgery. But one thing I can say, it is increasing because of, several reasons. Because, people, one is, that is, beauty and entertainment segment where people look, everybody wants to look better. So एक तो उस फील्ड में से काफी जो है यूज हो रहा है, वहां पे लोग जो है अलग अलग तरह की सर्जरी हो रही है उनमें। दूसरा हो रहा है कि बहुत सारा जो ना एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं आजकल, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को,
तो उनके जो एक्सीडेंट के जो पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद जो स्कार होता है या जो उनको कुछ भी चोट के निशान रह जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी का यूज हो रहा है। इसके अलावा जो एक फेयर दिखने का जो चार्म रहता है लोगों को, फेयर लगने का, उसको लेके भी काफी, हालांकि दीज आर नॉट वेरी गुड थिंग्स बट स्टिल अगर हम स्कोप की बात करें तो इस तरह के एरियाज में लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई भी नेचुरल डिफॉर्मिटी होती है बॉडीली पार्ट्स में या शरीर के अंदर, तो मुझे लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी का जो बिकॉज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, बट नाउ जो है ना धीरे धीरे अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है लोगों की, तो लोग जो है इन चीजों को ले रहे हैं आजकल, है ना। पहले बहुत एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता था, जो लोग उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में थे वही लोग लेते थे, लेकिन आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी इस तरह की चीजें धीरे धीरे डाउन द लाइन ब्यूटी सैलून्स और इन सब के जरिए जो है नीचे तक जा रही हैं, और लोग जो है उनको those who are having paying capability are increasing. So I think the scope is wider and increasing every year. और बहुत डिटेल में स्पेसिफिक है, we can one to one जो है सेशन के जरिए हम लोग बात कर सकते हैं, but in nutshell the scope for cosmetic or plastic surgery is increasing, and it's paying also, good rewarding also. Right. And just an additional point here, one of my students was doing dental and she's just finished. So she was looking for what next. So there are two options that we are discussing, and मैंने उनको दो चीजें recommend की हैं. So एक तो ऑर्थोडोंटिस्ट, कॉस्मेटिक ऑर्थोडोंटिस्ट. सो आपने आजकल देखा होगा हर व्यक्ति, हर बच्चा कुछ तो ये लगा के रखता है दांतों में, उसको लगता है कि उसके दांत बाहर हैं वगैरह, तो एवरीवन वांट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइलिंग टीथ, राइट? सो उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी तो है ही, बट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री भी काफी ज्यादा अपकमिंग फील्ड है. सो डेंटल यदि आप करते हैं तो ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि अरे डेंटिस्ट और इसमें कुछ ये नहीं है. यदि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, यदि आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, so there is certainly a lot of scope in cosmetic dentistry also. So cosmetics related काफी सारे medical branches भी हैं. There's another question, Manoj, which you might have to take is private MBBS के लिए कितनी फीस होती है typically, if somebody wants to know. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली जो फीस का स्ट्रक्चर है कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कॉलेज की रेपुटेशन इनटेक के ऊपर काफी डिपेंड करता है. इंडिया में अभी मेरे पास इस साल की काफी सारी इंफॉर्मेशन है कि नॉर्मल जो फीस का रेंज है लगभग 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तो बहुत नॉर्मल है. बट देयर आर सम कॉलेज 1 to 1.25, 1.5, and some colleges are charging up to 1.5 to 2 crore rupees for the entire course, which includes tuition fees, hostel, and everything. Yeah. So at least, on an average, you need to have at least 1 crore in your pockets to go for a private college, MBBS particularly I'm talking. MBBS, right. Dental में काफी थोड़ा सा relatively कम है, dental उतना expensive नहीं है relatively, but MBBS in private college is very expensive and it will cost you. Even government colleges ने बहुत सारी government ने जो है payments इस कर रखी है या मैनेजमेंट कोटाई सीट कर रखी, वहां पे भी जो है आपका मतलब 20-25 लाख रुपए तो बड़ा नॉर्मल सा है एक्सपेंसेस उसके अंदर भी. बट अगर आप प्योरली प्राइवेट कॉलेज जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी मैनेजमेंट कोटाई सीट के अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स लिमिट कर रखी है, फीस लिमिट कर रखी है. बट अगर आप मेरिटोरियस है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आप मेरिट में बहुत नहीं आ पाए, पोजीशन नहीं बना पाए, and if you are willing to pay, then you need to have at least on an average 75 lakh to 1 crore rupees, bare minimum, to go for a MBBS in a private medical college. Yeah, sure. So just an additional point, मेडिकल में MBBS में 3 टाइप के एडमिशन होते हैं. एक प्योर प्ले गवर्नमेंट सीट होती है, एक प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट होती है, और एक प्राइवेट सीट होती है. सो प्राइवेट सीट बहुत एक्सपेंसिव है, एज मनोज ने बताया कि वो 1 करोड़ तक, 1 CR तक जा सकता है, उससे भी ज्यादा भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी एंड ऑल इज देयर. कई लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाते हैं उसमें. और उसका एक और ये रीजन भी रहता है कि आपको यदि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस से यदि आपने किया हुआ है तो गवर्नमेंट में 2 साल या वट एवर एक्स नंबर ऑफ इयर्स आपको गांव में, विलेजेस में काम करने की जरूरत मैंडेटरी नहीं होती.
राइट. सो दैट इज वन पॉइंट. यदि आप गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज बोलेंगे तो फीस थोड़ी कम होती है, विच कैन रेंज फ्रॉम मे बी 7-8 lakhs to 12 lakhs per annum, ऐसे सब. और 12-15 lakhs पर एनम कॉलेज कॉलेज पे डिपेंड करता है, बट फीस काफी कम रहती है प्योर प्राइवेट से. एंड देन गवर्नमेंट सीट जो होती है, गवर्नमेंट सीट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो तो हार्डली कुछ कॉस्ट बोल सकते हैं इसके कंपैरिजन में. सो दीज आर द 3 कैटेगरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन which I will take is coming from Purnima. She is asking, in 11th standard, which all schools slash colleges in Pune do we have where we can take the PCMB combination together? So there are many schools and colleges. Pretty much in all CBSE schools you can opt for PCMB. यदि आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्कूल को ऑप्ट करते हैं तो भी टिपिकली सारे कॉलेजेस में पीसीएमबी अलाउड होता है. सो बहुत ही रेयर कॉलेज होंगे जिसमें अलाउड पीसीएमबी अलाउड नहीं रहेगा, बट पीसीएमबी इज ए फेयरली पॉपुलर कॉमन कॉम्बिनेशन अवेलेबल, क्योंकि उनके पास पीसीबी या पीसीएम तो अवेलेबल रहता है. दैट मीन्स फैकल्टी इज देयर. सो पीसीएमबी आपको इजीली मिल जाएगा. जस्ट दैट इट इज स्लाइटली हैवी फॉर यू, बट यदि आपका रिसर्च में करियर बनाने का प्लान है, सो पीसीएमबी आपको मैथ्स विल गो अ लॉन्ग वे यदि आप बायोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं. सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. यदि आपको स्पेसिफिक कॉलेजेस के बारे में पता करना है, यदि आप स्पेसिफिक एरिया के बारे में पूछ रहे हैं कि इस एरिया में कौन से कॉलेजेस हैं, सो यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन अवर व्हाट्सएप एंड वी विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू दैट. There's another question. Nishant Moore is asking, which medical field has more scope from which we can earn more? Manoj, do you want to take this and then I will add on? I read, a couple of days back, India there is a huge dearth of, pediatrics specialists, pediatricians की काफी कमी है, और हर साल इंडिया में 2 से 2.5 करोड़ बच्चे नए भी जुड़ते हैं. तो मुझे लग रहा है pediatrics is a very popular option and अभी भी काफी huge डिमांड में रहते हैं pediatrics. So if you specifically want to go for that, I think pediatrics is a good choice. Sushma, you want to? Yeah. So, Nishant, my answer is that yeah, pediatrician could be a good choice. But आप यदि किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं और अच्छा काम करते हैं तो मुझे लगता है कि इट विल सर्टेनली गिव यू गुड मनी. सो डोंट वरी टू मच अबाउट विच स्पेसिफिक ब्रांच. आप अपना बेस्ट करते चलिए, और जो भी आप फील्ड लेंगे उसमें यदि आप टॉप में हैं तो आप सर्टेनली बहुत अच्छा अर्न करेंगे. मेडिसिन जो करियर है उसमें अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, प्रोवाइडेड यू हैव गुड नॉलेज. सो आप यदि डॉक्टर्स भी देखेंगे, स्पेशली आई कैन टॉक अबाउट पुणे. आई डोंट नो वेयर आर यू फ्रॉम, बट पुणे में जगह जगह पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. ओके, बट ऑल डॉक्टर्स आर नॉट वांटेड काइंड ऑफ डॉक्टर्स. तो एक डॉक्टर के पास तो भीड़ इतनी है कि उसको खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं रहता है, और बाकी बैठे रहते हैं बट ज्यादा कुछ नहीं कर पाते. रीजन इज दैट दिस डॉक्टर माइट हैव, जो पढ़ रहा है जिस समय, उसने काफी सारे ब्रॉड पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व किया, देखा है. तो कई लोग बोलते हैं ये डॉक्टर जो बताता है इसका सही रहता है, बिल्कुल ये सही बता पाता है. सिम्टम्स देख लेगा, आपको सही बताएगा, कुछ और ही चीज बता देगा, ये है शायद आपको. सो वो कैसे होता है? ऑब्जर्वेशन से होता है. सो मेडिसिन, यदि आप रिसर्च नहीं भी कर रहे हैं तो मेडिकल साइंसेस जो है, यदि आप डॉक्टर बनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिसर्च एरिया है, बिकॉज हर की बॉडी अलग है, हर के खाना पीना अलग है, हर की लाइफस्टाइल अलग है. तो यदि आप ऑब्जर्वेंट हैं और आप उसको ढंग से कर सकते हैं तो आपका डायग्नोसिस अच्छा होगा, और डायग्नोसिस अच्छा होगा तो आपकी कैपेबिलिटी टू अर्न ऑटोमेटिकली गोज अप. एंड एक सर्वे भी मैं पढ़ रही थी जिसमें इन फ्यूचर 2030s and onwards, medicine, that means surgeons and orthopedics, pediatricians, and one more was there which was psychiatry, will top the list, because इतना ह्यूमन मशीन इंटरफेस हो जाएगा, लोग डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं एक दूसरे से. सो बहुत सारा साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आएंगे. तो साइकेट्री विच इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, जिसमें आप मतलब वो साइकोलॉजी इज डिफरेंट, साइकेट्री आई एम टेलिंग, जो आप एमबीबीएस के थ्रू ही
उसके आगे ही स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, वो ब्रांच भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी. बट question is, you have to be perfect in your area and you will certainly make lot of money, and along with the service that you will give to people. Another question which says, my daughter is in 10th currently and going to 11th in 2021. If she wishes to explore BARC, all India level aptitude test, where should she start from? She Ma'am, she needs to start preparing all 10th, 11th, 12th CBSE books very thorough, then ICSE very thorough. Okay, so if she's thorough in those and then also does lot of competitive level questions and solving those problems, she will certainly get through there. So we can answer more when we discuss one on one. You can message us, and Manoj and I will come back to you with specific ways she could prepare. So we also do this kind of mentoring, where it is not just career mentoring. Once you are done, आपने finalize जब कर लिया कि career हमें इस field में बनाना है, तो over 2 years of journey we provide mentors who will continuously touch base with students. Because in my so many years of connection with students, I realized कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में कैपेबिलिटी है बट फोकस नहीं है, कई में फोकस है बट उतनी कैपेबिलिटी उनकी डेवलप नहीं हुई है. सो आपको हर जगह एक टच पॉइंट चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग चाहिए. काफ़ी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में काम कर लेते हैं, बट बहुत सारे टीनेजर्स दे आर नॉट रेडी टू वर्क विद देयर पेरेंट्स. सो इन दैट केस वी प्रोवाइड मेंटर्स एंड मेंटरशिप. उसमें वी चॉक आउट अ प्लान, बच्चों के लिए प्लान चॉकआउट करते हैं पूरे 2 साल का. उसके बाद बीच बीच में उनके साथ सेशन रख के उनको जो भी एग्जाम उनका है, टारगेट एग्जाम 1 2 3, टॉप 3 एग्जाम्स, उनके लिए हम लोग उनको व्हाट बुक्स टू रीड, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ मच टू फिनिश, टाइम टेबल, डेली स्केड्यूल, उस सब में उनको हेल्प करते हैं. सो दैट इज अनदर एरिया दैट वी वर्क विद. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज come back to us on our WhatsApp number. I hope you have our numbers. Otherwise, you can take down our numbers. It is 9923236610. I will also chat over here, so you can get you can note that number, and you can connect with us if you are not in our group. Yeah, I have mentioned the numbers. Are there any more questions? I don't think anyone has any further questions. So thank you so much for joining. And in the next Saturday session, we are going to discuss about the careers in finance. And don't think that career in finance is only limited to people who want to do BCom and take commerce in 11th. Most of the investment bankers and top professionals in bank are actually physics and math people. There are btechs who get into finance because it is a high paying field and also interesting to many people. So if you remember our ex RBI governor, he was btech, and then after that he did PhD in economics from US. Then if you know Chetan Bhagat, he was also working in bank, actually a BTech, and moved into financial services before, and after that he moved into full-time writing and many other areas. So don't limit yourself and you're thinking that ये सिर्फ BCom या BA इस टाइप के लोगों के लिए finance careers है. When I was working in my professional career, I realized I was working for Credit Suisse, which is a Swiss bank. उसमें उनकी जो high end investment managers होते हैं, investors होते हैं, और जो those who manage portfolio were PhD in physics and mathematics. So
डोंट थिंक दैट बस कॉमर्स लेना है उसको काम करना है, नहीं। सो ये सेशन इसीलिए हमने रखा था। एंड आई सी दैट जिसको मेडिसिन में इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग का अटेंड नहीं कर रहा, जो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है वो मेडिसिन अटेंड नहीं कर रहा। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि पीपल शुड बी वेरी ओपन एट दिस पॉइंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दैट वी हैव आर of the students who are in class 10th or 9th. So go with an open mind first. That is the beginning of career choices, right? Unless your child has shown clear indication कि इंजीनियरिंग ही करनी है, उसके बाद भी इंजीनियरिंग करके भी आप रिसर्च में जा सकते हो, इंजीनियरिंग करके भी आप फाइनेंस में जा सकते हो, राइट? बिकॉज फाइनेंस की फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड यदि आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट पढ़ना चाहते हो, कुछ उस पर रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको मैथ्स नहीं आता तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, right? So I would want that these people, everyone is very open at this point. And then जब तक आप पीएचडी या पोस्ट डॉक तक करियर आपका सेट नहीं करते हो, जरूरी नहीं कि आप सब एक साथ करो, यू कैन डू ग्रेजुएशन, टेक सम ब्रेक, डू सम जॉब, देन डू इट। बट आप हम वहां तक का व्यू देखना चाहते हैं, कि वहां तक का हम व्यू देते हैं पेरेंट्स को कि आप वहां तक का सोचो, ट्रैक बैक, अपना प्लान भी बनाओ कि 2 साल जॉब करूंगा फिर ये करूंगा, like that, because अभी हमारे पास सारी information है, everything is available, nothing is going to change after few years, we know, we can see into the future, we can peep into the future, and then can design the career. That's why first session we had called it as a designing of career. Okay, so please be open, try to attend all the lectures, and then take a call, right? So feel free to connect with us anytime on our WhatsApp numbers. And thank you so much again to spend time with us and giving us very patient hearing. And stay safe, and looking forward to seeing you in our coming lectures. Thank you so much. Have a great day ahead. Thank you. Thank you so much. Thanks Manoj. Bye.